Good evening, everyone. Good evening to each one of you present today at today's VCM on the topic Amendment in Schedule 3, Auditor Report and Karo. It is a moment of extreme pleasure to welcome you all the members who are present here to attend this VCM. On behalf of CIRC, ICA Sunny Agarwal welcomes you all. First of all, I would like to convey my regards to all the dignitaries present at today's VCM, starting from our CIRC Chairman, C. Atul Malhotra ji, CIRC Secretary, C. Lokesh Maheshwari ji, CIRC Treasurer, C. Rajiv Gupta ji, who have spared their valuable time to attend today's VCM. We welcome you, sir. Friends, to talking about today's topic, it is one of the hot topic these days to be taken care of. In fact, from the last few years, we are witnessing rapid changes in the company law and ROC, which clearly indicates one thing that company law and ROC compliances are not that simple as they were used to in the past time. There were times when ROC and company law matters were not given importance, and we, the professionals, 100% we were emphasizing on income tax and sale tax, that is called now GST. But nowadays, there's a different scenario. Company Law Ministry have clearly indicated that ROC cannot be taken leniently. And to brief us all about on the today's topic, we are privileged to have with us one of the most eminent speaker on corporate laws in the present time, CS Divesh Goyalji. On behalf of CIRC, I welcome you, sir. Before proceeding further, I would like to request our CIRC Chairman C. Atul Malhotra ji to address us all with his welcome statement. Over to Atul ji. Thank you, Sunny Bhai, the moderator of today's virtual meeting hosted by the CIRC of ICI of India. My seniors in the profession and smart young speaker of today's VCM, CS Divesh Goyal ji, my colleague in the regional council, Lokesh Bhai from Kota and Rajiv Bhai from Meerut itself. Friends, very good afternoon to all of you. Our team CIRC is working for our members and students, and we have very firm decision, or rather commitment, that during our tenure, during our services which have been entrusted on us, we will be always available for our members and students. As said by Sunny ji, that there are various changes as far as topic is concerned, but before coming on the topic, I just wanted to share 2-3 things. First of all, our country, our ICI has been given the opportunity to host the World Congress of Accountants, which is scheduled on 18th November to 21st November at Mumbai itself. And whatever questions are in our mind regarding the future of our profession, regarding the new avenues, the new opportunities, I request all of you to please register for that bigger picture, so that we may be able to analyze and we may have faith in our profession, that we are in a profession which is one of the best profession of the world. Another important thing is that our Rajiv Bhai has planned an international RRC, which is scheduled from 2nd June. And Rajiv Bhai is looking after all these arrangements. And my personal opinion, my personal view, my personal humble request from all of you is that we are very close to the desired number, and still I am willing that there must be representation from the different cities, because it's program of CIRC. So a lot of factors are there, a lot of arrangements are there, a lot of issues are there regarding
the traveling, regarding the stay, regarding the fooding, regarding the technical session, regarding the places where we have to visit there, and the accommodation, and so on. So all the things have been taken care of, very well designed, very well planned, RRC by Rajiv Bhai and our team CIRC. So I request all of you, whatever maybe the challenges are always there. Never there. It will not be there that I feel that I am free now. Now I can go for Kashmir. Now I can go for somewhere else. ऐसा कभी नहीं होगा. So challenges are there, but since we learn a lot, what is the purpose of this RRC? Purpose of this RRC is to create a network, to interact with the different age of our members, to interact with the different persons, members from different places of our country, or especially from our region. So it is worthwhile. And now coming to the topic, and learned speaker is with us. So I don't want to comment or open anything for that. He will be deliberating, sharing his knowledge. Thank you, the team CIRC and Sunny Bhai and Devesh ji for managing this wonderful program today. Thank you, thank you, thank you. Over to the MOC of today's, Sunny Bhai. Thank you, sir. Thank you, Chairman, sir. Now I request our treasurer, CIRC treasurer, C. Rajiv Gupta ji, to address us with a few words. थैंक यू सनी भाई. मैं सबसे पहले तो हमारे सीआरसी चेयरमैन अतुल भाई साहब का बस कुछ शब्दों से यही कहना चाहूंगा, करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है. तो सब कुछ जो है भाई साहब की गाइडेंस में चल रहा है. पूरे सीआरसी को जिस तरीके से भाई साहब लेके चल रहे हैं पूरी टीम को, मतलब वो अपने आप में अनबिलीवेबल. भाई साहब के द्वारा दिन रात 24/7 में तो भाई साहब से कई बार पूछता भी, भाई साहब आप सोने का वक्त निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे. तो इतना डेडिकेशन जो सीआरसी के लिए प्रति भाई साहब का है. हमारे लोकेश भाई साहब सेक्रेटरी जी, और इसके अलावा हमारे अनिल भाई साहब है, आकाश जी है, शरद भाई साहब है, सभी बहुत अच्छे तरीके से जहां जिसको जितना सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हमें होती है उससे ज्यादा मिल पा रहा है. तो उम्मीद करेंगे सीआरसी का ये जो कार्यक्रम है इसी तरह मेंबर के लिए, मेंबर और स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं हमें बेनिफिशियल मिलता रहे. आज का जो टॉपिक है बड़ा हॉट टॉपिक है. उसके लिए सबसे पहले सीआरसी पूरी टीम को बधाई कि एक अच्छे टॉपिक पे आज ये बीसीएम होने जा रही है. और बहुत अच्छे हमारे स्पीकर दिवेश जी, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, काफी टाइम मैंने उनके सेमिनार ज्वाइन किए हैं. तो मुझे पूरी उम्मीद है जो मेंबर्स पहली बार आज बड़ी उम्मीदों के साथ इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, उनको अपनी जो उनके क्वारीज है, जो उनको क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो सब आज इस बीसीएम के माध्यम से मिल पाए. एक चीज बस और मैं कहूंगा, भाई साहब ने जो आरआरसी होने जा रही है इंटरनेशनल, उसके बारे में बताया. एक वर्ल्ड कांग्रेस हमारी हो रही है जो कि 118 साल में इंडिया को पहली बार मौका मिल रहा है, और 1904 के बाद 21st है, क्योंकि 4 साल में एक बार होती है. तो मेरी उम्मीद रहेगी कि बाकी मेंबर्स भी इसको ज्वाइन करें. जो फिजिकली कर सकते हैं, मुंबई में है ये, अगर मुंबई में वो जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप वर्चुअल मोड में भी रजिस्टर करवा सकते हैं, जो कि 30 जून से पहले अगर आप करवाते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा. इसके साथ साथ मैं बाकी बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. दिवेश जी को अपना डेलिब्रेशन देना है और हम बहुत उसमें उम्मीदों के साथ उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने शेड्यूल 3 और जो चेंजेस आए हैं उसको अपने यहाँ पर जो हमें प्रैक्टिकल इश्यूज आने वाले हैं उनको हम टाइमली रिजॉल्व कर पाए. तो इसी के साथ मैं एक बार दिवेश जी का वेलकम करना चाह रहा हूँ सीआरसी के प्लेटफॉर्म पे कि भाई साहब ने इतना हमारी रिक्वेस्ट पे वक्त निकाला, और उम्मीद करेगी कि जो मेंबर के पॉइंट है उनको पूरे तरीके से कवर किया जाएगा. और जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे उनको हमारे आज के जो मॉडरेटर है, जो इस प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे हैं, सनी अग्रवाल जी, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हमारे यहाँ की मेरठ ब्रांच के, ये हमारे पास सेक्रेटरी भी रहे हैं और अभी करंटली ट्रेजरर है मेरठ ब्रांच में. तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर या जो मेंबर की क्वेरीज है उसको भी लेके चलेंगे. ओवर टू सनी भाई. सनी जी. Thank you, sir. Thank you, Rajiv, sir. I think CS Rajiv Goyal ji needs no introduction, but still there are some members who are new and maybe not familiar with Devesh ji. I would like to read out his brief profile amongst you all. CS Devesh Goyal ji is a fellow member of the Institute of Company Secretary with 9 years of intense expertise.
He is young and progressive company secretary with zeal to dig deep into the nuances of company laws. Being a researcher at heart, he has done meticulous research and has penned various articles on the Companies Act 2013. He has co-authored the Company Law Premier book published by the Institute of Company Secretaries of India. He has also added a lot of issuance of various guidance notes by ICSI. He has deliberated at various several forums on corporate laws throughout the country. Over the last 2 years, he has deliberated more than 200 seminars and penned approximately 800 articles on multiple topics of corporate law. We welcome you again, CS Dubesh Goyal ji. Now I request Divesh ji to start his deliberation. Over to Divesh ji. Thank you so much, Sunny bhai, for the introduction and your words. First of all, I would like to thanks to the C. Atul Mehrotra ji, Lokesh Maheshwari ji, and Rajiv Gupta ji, and all the CRC members for giving me an opportunity to interact with such a large gathering of the CIRC for discussion on the amendment of the Schedule 3. So, I'm definitely I would like to say this is my pleasure that I am representing and serving to all of you and discussing the provision that is relating to the amendment in Schedule 3 and auditor report in front of you. So I again say once again thanks to the CIRC and all the council members of the CIRC for this opportunity. So I will not take much time on the other things. I will directly come upon my today's topic, that is amendment and the Schedule 3 and the auditor's report. One thing I would like to say, as Sunny have already mentioned in the chat box, if anyone have any query, anyone have any question, during the session, you can mention in the question answer Q&A, in the Q&A column, you can mention your questions. So it may happen that some question we will take up simultaneously during the session, and some we can say some questions we will take up at the end of the session. Sunny bhai, I am properly audible? Yes, sir, properly audible. Okay. So I will try to discuss all the provisions which are the duty assigned to me today. I will try कि वो सभी provisions मैं 5:30 तक discuss कर लूँ, so that in later on 15-20 minutes whatever queries, whatever questions will be there, we can discuss that. और जो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, काफी सारे क्वेश्चन जो उस टाइम से रिलेटेड होंगे, उस टॉपिक से, उस पर्पस से, उस टाइम से रिलेटेड होंगे, I will try to take up them immediately at that time only. So let me share my screen and start discussion on our today's mandatory topic, our today's one of the very important topic I can say, that is in relation to the amendment in Schedule 3 and auditor report. As you can see on my screen, my slide is relating to the amendment in the Schedule 3 and auditor report. What is Schedule 3? We know Schedule 3 is for the preparation of the financial statement, that is balance sheet and the P&L. जो भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जो भी हम P&L ड्राफ्ट करते हैं, उसको ड्राफ्ट करने के लिए जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस या उसको ड्राफ्ट करने के लिए जो एक हम बोल सकते हैं एक फॉर्मेट है, वो सब मेंशन है Schedule 3 में. मींस अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में बात करें कि आप लोग जब बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में आपको कौन सी फिगर, कौन सी डिटेल्स किस प्लेस पर लिखनी है, किस कॉलम में लिखनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जो मिलती है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है Schedule 3 से. दिवेश जी, आप जो बनाते हो बैलेंस शीट का, अगर हम दिवेश जी, हाँ जी सर. someone is writing in the chat box that थोड़ा सा आप फास्ट चल रहे हैं. अच्छा फास्ट, ओके, थोड़ा स्लो कर दीजिए. ओके. वो एक्चुअली अभी टॉपिक का बैकग्राउंड चल रहा है ना, बाकी टॉपिक पे आगे तो डेफिनेटली हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे. ओके, फाइन. श्योर सर. तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि Schedule 3 होता किस लिए है, बिकॉज अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट क्यों आए हैं, वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज पे रखना होता है कि ये चीज है क्या. तो Schedule 3 के लेके हमें एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि Schedule 3 इज नथिंग एल्स, इट इज हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट एंड P&L. अब बैलेंस शीट्स में आप जितने भी डिस्क्लोजर्स देते हो, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट यूज करते हो, वो सारी चीजें आपको Schedule 3 में डिफाइंड है. तो नाउ मिनिस्ट्री ने जो अमेंडमेंट किया है ना, वो Schedule 3 में अमेंडमेंट किया है. तो आप रिलेट कर सकते हो Schedule 3 में अमेंडमेंट करने का मतलब है कि आपकी बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, P&L के फॉर्मेट में, उनके डिस्क्लोजर के फॉर्मेट में कोई ना कोई अमेंडमेंट आया है. और सेकंड अमेंडमेंट जो किया है ऑडिटर रिपोर्ट, वी ऑल आर अवेयर कि वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स, it is our responsibility to prepare the auditor's report.
तो अगर हम बात करते हैं इस अमेंडमेंट की, तो ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट रिसेंटली आया है। ये अमेंडमेंट एक्चुअली आया था 24 मार्च 2021 में। मतलब आप लोग देख सकते हो मोर देन 1 ईयर हो गया है इस अमेंडमेंट को आए। एंड इशू क्या है कि आज तक हमने इस अमेंडमेंट को स्टडी क्यों नहीं किया या आज तक इस अमेंडमेंट पे वर्क क्यों नहीं किया? बिकॉज ये आ तो गया था 24 मार्च 2021 से, बस इंप्लीमेंट सेम डे पे नहीं हुआ था। सो जो 24 मार्च 2021 को ना 3 नोटिफिकेशन आए थे। पहली नोटिफिकेशन आई थी रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट इन शेड्यूल 3 जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड नोटिफिकेशन आई कंपनीज अकाउंट रूल्स। इसमें क्या था, जो डायरेक्टर रिपोर्ट बनाते हैं ना, डायरेक्टर रिपोर्ट में कुछ अमेंडमेंट आए थे। थर्ड अमेंडमेंट आई कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स। ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स के से मिनिस्ट्री ने क्या किया, उन्होंने ऑडिटर रिपोर्ट में कुछ अमेंडमेंट किए हैं। तो इस साल अब सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि ये अमेंडमेंट इंप्लीमेंट कब से होंगे, ये अमेंडमेंट किस डेट से इंप्लीमेंट होंगे। जैसा कि अमेंडमेंट आ गए थे 24 मार्च 2021 को और सेम डेट पे ऑफिशियल गजट में भी पब्लिश हो गए थे। मतलब 24 मार्च 2021 से ये कंपनी लोग का पार्ट तो बन गए थे, बट मिनिस्ट्री ने एक स्मॉल लाइन लिखी, एक डिस्क्लोजर दिया कि जितने भी ये अमेंडमेंट है शेड्यूल 3 से रिलेटेड, ऑडिटर रिपोर्ट से रिलेटेड, डायरेक्टर रिपोर्ट से रिलेटेड, ये तीनों अमेंडमेंट जो इंप्लीमेंट होंगे, एप्लीकेबल होंगे, वो होंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। जो अभी आप लोगों का, जो अभी हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2022, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो ये जितने भी अमेंडमेंट है ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 पे इंप्लीमेंट होंगे। तो 2021-22 पे जब ये इंप्लीमेंट होंगे तो मतलब अब इस साल हम लोगों को जो भी बैलेंस शीट्स बनानी है, जो भी P&L बनाने हैं, जो भी ऑडिटर रिपोर्ट्स बनानी है, उन सभी में इन अमेंडमेंट को इफेक्ट देना पड़ेगा। We know today is the 13th May. Now we are at a very crucial stage. Now we are at a very crucial time because ये हमारे लिए एक बहुत crucial time है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, practically ये 3 से 4 मंथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर बिजी बाय प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम बिजी होंगे प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, क्या हमें लेटेस्ट अमेंडमेंट की नॉलेज है? क्या हमें पता है लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में चेंज करना है, क्या अपनी बैलेंस शीट में चेंज करना है, क्या अपनी P&L में चेंज करना है? So all those things today we are going to discuss in this session. So again I'm saying one thing to all of you guys, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, feel free to ask, don't hesitate, don't think anything. So सबसे पहले जब भी कभी कोई अमेंडमेंट आता है ना, किसी भी अमेंडमेंट के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज होता है जब भी कोई अमेंडमेंट आता है कि अमेंडमेंट आया क्यों है, इस अमेंडमेंट का पर्पस क्या था। दिस इज ऑलवेज अ फर्स्ट क्वेश्चन व्हेनेवर देयर इज एन अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट क्यों आया था, तो देखिए जैसा कि मैंने अपने स्क्रीन पे लिखा है, सबसे पहला रीजन है इंक्रीजिंग स्ट्रिंजेंसी इन कंप्लायंसेस। व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जितनी भी हमारी बैलेंस शीट्स है, P&L है, एक्चुअली क्या है, इन्हीं के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को पता चलती है, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, उनको सभी जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी के डाटा पता चलते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलते हैं। तो दे वांट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ा स्ट्रिंजेंट किया जाए, थोड़ा इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। सेकंड रीजन, adding numerous additional disclosure in financial statement, director report and auditor report. इन अमेंडमेंट से क्या हुआ है, इन अमेंडमेंट से मिनिस्ट्री ने हमें कोई नई गाइडेंस नहीं दी है। कोई इन जो अमेंडमेंट्स आए हैं ना, इन अमेंडमेंट्स का पर्पस क्या हुआ है, इफेक्ट क्या हुआ है, इन अमेंडमेंट के थ्रू मिनिस्ट्री ने डिस्क्लोजर बहुत सारे बढ़ा दिए हैं। अभी तो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज सेशन की स्टार्टिंग में बता देता हूँ। अगर आज की डेट में, अगर हम पुराने लोग की बात करें इस अमेंडमेंट से पहले की, अगर आपको एक बैलेंस शीट बनाने के लिए अगर 50 मैन आवर्स लगते थे, तो अब आपको एक बैलेंस शीट बनाने के लिए ऑलमोस्ट 75 to 80 मैन आवर्स लगेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है बैलेंस शीट बनाने में पहले जितना टाइम लगता था, अब उससे 1.5 टाइम ज्यादा लगेगा बैलेंस शीट बनाने में टाइम, बिकॉज इतने सारे डिस्क्लोजर इन्होंने चेंज कर दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ दिस अमेंडमेंट, ट्रांसपेरेंसी। अब हमें पता है जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनीज के, वो एमसी की साइट पे पब्लिश होते हैं। जब हम AOC4 फाइल करते हैं, AOC4 एमसी की साइट पे पब्लिश होता है। एनी पर्सन, चाहे वो एक प्रोफेशनल हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट हो, चाहे वो एक बैंक हो,
या वो एक लेमैन हो, 100 रुपीज पे करके वो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड कर सकता है। तो जब उसको अलाउड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डाउनलोड करना, जब उसके पास पावर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब डिस्क्लोजर बढ़ जाएंगे ना, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा ट्रांसपेरेंसी पे। जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स बढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, बिकॉज अब और ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलने लग जाएगी। सो ये छोटी सी स्लाइड है। 3 नोटिफिकेशन इशू हुए थे 24 मार्च 2021 को। फर्स्ट, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स अमेंडमेंट रूल 2021, ये इसका पर्पस था टू अमेंडमेंट द ऑडिटर रिपोर्ट। सेकंड, कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स, जिसका पर्पस था अमेंडमेंट इन द डायरेक्टर रिपोर्ट। एंड थर्ड वन रिलेटिंग टू अमेंडमेंट टू शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट, जिसका पर्पस था अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हम यहाँ 2 नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, एक तो ऑडिटर रिपोर्ट में क्या अमेंडमेंट है, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अमेंडमेंट है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप इस अमेंडमेंट का बेनिफिट्स क्या होगा। ये हेल्प करेंगे फ्रॉड रोकने में, ये हेल्प करेंगे ऑडिटर्स को स्ट्रेस फ्री ऑडिट करने के लिए, और ये एनकरेज करेंगे करेक्ट एंड टाइमली वर्क बाय द कॉर्पोरेट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर अमेंडमेंट रूल 2021। जब भी हम ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स की बात करते हैं, तब उससे पहले एक पॉइंट माइंड में आता है कि ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स है किस लिए, किस पर्पस से ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स इंपैक्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा, मेरा सेशन में ना एक और चीज है, मेरी सेशन विल बी फुल ऑफ क्वेश्चंस, तो ट्राई करना आंसर देने की, इससे एक कनेक्टिविटी बना सकते हैं वेबिनार्स में भी। ऑडिटर्स रिपोर्ट कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग बनती है कंपनीज एक्ट के? अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑडिटर रिपोर्ट कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग बनती है? किसी का एक क्वेश्चन भी है, कैन वी हैव दिस स्लाइड? डेफिनेटली इन स्लाइड्स को मैं आप चैप्टर CIRC के साथ शेयर कर दूंगा, चेयरमैन साहब के साथ, तो वो आप लोगों को सब शेयर कर सकते हैं। So one answer I have received, auditor report is prepared according to the section 143. Section 143 subsection 3 में लिखा है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में हमें क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं। तो एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ऑडिटर, जब भी हम ऑडिटर रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो उसमें क्या डिस्क्लोजर देने हैं, वो सभी डिस्क्लोजर हम लेते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। बट 143 सबसेक्शन 3 के लास्ट क्लोज में लिखा है कि जो चीजें 143(3) में लिखी है, ये तो आपको ऑडिटर रिपोर्ट में देनी है, प्लस रूल 11 ऑफ दिस चैप्टर, रूल 11 में जो जो पॉइंट्स लिखे हैं वो भी आपको अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन करने हैं। तो रूल 11 में प्रैक्टिकली अभी तक 5 क्लोज थे, A to E, सॉरी अभी तक 4 क्लोज थे, A to D, A B C D, अभी तक 4 ऐसे क्लोज थे जो रूल 11 में लिखा था और जिनकी रिपोर्टिंग आपको ऑडिटर रिपोर्ट में करनी पड़ती थी। तो सबसे पहला अमेंडमेंट तो मिनिस्ट्री ने क्या किया है, अभी जो 4 क्लोज थे ना रूल 11 में, उन चारों में से क्लोज डी को डिलीट कर दिया है, क्लोज डी को रूल 11 से ओमिट कर दिया है, और 3 नए क्लोज ऐड कर दिए E, F और G। तो अगर अब हम रूल ऑडिटर रिपोर्ट की बात करें, तो ऑडिटर रिपोर्ट आप 143 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग तो बनाएंगे ही बनाएंगे, प्लस रूल 11 के क्लोज A to C एंड E to G के अकॉर्डिंग भी बनाएंगे, बिकॉज D को ओमिट कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात ही D की कर लेते हैं कि रिमूव कौन सा हो गया है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस साल हमें ऑडिटर रिपोर्ट में नहीं देना है। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है, रूल 11D omitted whether the company had provided requisite disclosure in financial statement as to holding as well as dealing in specified bank notes। हमें पता है 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद रूल 11 में एक अमेंडमेंट आया और एक क्लोज डी ऐड हुआ था। इस क्लोज डी के अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफाइड बैंक नोट्स की डिटेल्स, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स का डिस्क्लोजर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना होता था। अब क्या है कि डीमोनेटाइजेशन खत्म हुए ऑलरेडी 6 ईयर हो गए हैं, तो जो ये स्पेसिफाइड बैंक नोट्स वाला क्लॉज है इस साल ऑडिटर रिपोर्ट से डिलीट हो गया है। मतलब अब जो 31 मार्च 2022 की अब जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाओगे, उस ऑडिटर रिपोर्ट में स्पेसिफाइड बैंक नोट पे आपको डिस्क्लोजर नहीं देना है। तो होप दिस फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू।
अभी एक क्वेश्चन किसी का आया है, whether these amendment are applicable from financial year 2020-21 onwards. ये अमेंडमेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 पे ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुकी है, तो 2021 पे एप्लीकेबल, सॉरी 21-22 पे एप्लीकेबल हो चुकी है। तो मतलब 31 मार्च 22 की अब जो बैलेंस शीट बनेगी, जो 31 मार्च 22 की ऑडिटर रिपोर्ट बनेगी, उनमें इनका इंपैक्ट देना है। इसीलिए अभी मैंने बोला कि जो 31 मार्च 2022 की जो आप ऑडिटर रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें स्पेसिफाइड बैंक नोट पे कोई डिस्क्लोजर नहीं देना है। दिस इज थिंग 1। अब आते हैं नए क्लोजेस पे। सबसे पहले क्लोज ई, 3 न्यू क्लोज आए हैं, ई, एफ और जी। क्लोज ई भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 1, 2 और 3। क्लोज ई का सब क्लोज 1 पढ़ते हैं। नो फंड हैड बीन एडवांस, लोन और इन्वेस्टेड बाय कंपनी टू और इन एनी अदर एंटिटी इंक्लूडिंग द फॉरेन एंटिटी, that the intermediary shall not buy on behalf of the company, lend, invest in person entity, providing any guarantee security behalf of the ultimate beneficiary. इस वाले पॉइंट को हम ना एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। फॉर एन एग्जांपल 3 एंटिटीज है, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। अब कंपनी सी को लोन की रिक्वायरमेंट है, तो एक तो ऑप्शन है कि कंपनी ए डायरेक्टली कंपनी सी को लोन दे दे, बट कंपनी ए ने कंपनी सी को डायरेक्टली लोन नहीं दिया। कंपनी ए ने क्या किया, कंपनी ए ने कंपनी बी को लोन दिया, कंपनी बी ने ऑन द बिहाफ ऑफ ए कंपनी सी को लोन दिया। तो कंपनी ए तो हो गई है हमारी मेन कंपनी जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, कंपनी बी हो गई है इंटरमीडिएट और कंपनी सी हो गई है अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अब यहाँ पे ऑडिटर्स की थोड़ी क्या बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है, ऑडिटर्स की थोड़ी प्रॉब्लम्स इंक्रीज कर दी है मिनिस्ट्री ने। बिकॉज अभी तक क्या था, ऐसा कोई डिस्क्लोजर था नहीं ऑडिट रिपोर्ट में। मिनिस्ट्री ने क्या बोला, अगर आप कंपनी ए के ऑडिटर हो और कंपनी ए ने कंपनी बी को लोन दिया और कंपनी बी ने कंपनी ए के बिहाफ पे वो लोन कंपनी सी को दिया है, तो आपको इस चीज को अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस चीज पे मैनेजमेंट अपना डिस्क्लोजर देंगे और ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने जो डिस्क्लोजर दिया है वो सही दिया है, उन्होंने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। अब इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, मैं भी आप लोगों को इशू बता देता हूं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये हमें ICAI भी गाइड करेगा और गाइडेंस नोट भी इन्होंने निकाल दिया ICAI ने, हमें वहां से भी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इशू क्या है, आप ऑडिटर हो कंपनी ए के, कंपनी ए ने लोन दिया कंपनी बी, जिसको हम यहाँ इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, तो अब इतना ट्रांजैक्शन तो चेक कर सकते हो कि कंपनी ए ने कंपनी बी को लोन दिया है, इतने ट्रांजैक्शन में कोई इशू नहीं है। अब बात आती है कंपनी बी ने जब कंपनी सी को दिया है, तो आप तो ऑडिटर हो कंपनी ए के, तो आप कंपनी बी के अकाउंट्स को चेक कैसे करोगे कि कंपनी बी ने इस लोन का क्या यूज किया है जो कंपनी ए ने कंपनी बी को दिया है। अब ये एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेशनल, इन फ्रंट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि अब ये कैसे करे। तो इस चीज का हमें एज अ प्रोफेशनली ही सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज रिपोर्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैनेजमेंट डिस्क्लोजर देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देगा हमें, बट उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हमें अपनी रिपोर्टिंग तो करनी है। तो अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए हमें सोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम कैसे वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो लोन हो, चाहे वो गारंटी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एडवांस हो, अगर ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, अगर ऐसे रूट होता है कि जहां अल्टीमेट कंपनी ए है, इंटरमीडिएट बी है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी सी है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन में ऑडिटर्स को अपनी रिपोर्ट में प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब मैं आता हूं क्लोज ई के पार्ट 2 पे। अब ये पार्ट 2 में बोलता है, अगर आपने कोई फंड रिसीव किया है, मतलब अब आप तो हो कंपनी ए हो, कंपनी ए ने अब फंड दिया नहीं है बट रिसीव किया है कंपनी सी से। कंपनी ए ने लोन लेना था कंपनी सी से, कंपनी ए ने कंपनी सी से डायरेक्टली लोन नहीं लिया, कंपनी ए ने लिया बी से, बी ने ये लिया था सी से, तो बी ने सी के बिहाफ पे हमें दिया। तो चाहे हम कंपनी ए हैं या कंपनी सी है, हम किसी भी साइड की कंपनी है या कंपनी बी है, हमें इस चीज को रिपोर्टिंग अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में प्रॉपरली करनी पड़ेगी। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। अब क्लोज ई में तो क्या है, E1 में क्या है,
कंपनी ए रिपोर्ट करेगी और कंपनी ए के ऑडिटर भी रिपोर्ट करेंगे, कंपनी बी के भी करेंगे। इस एग्जांपल की अगर बात करें, वही वाला एग्जांपल एबीसी वाला कंटिन्यू रखते हैं, तो यहाँ पे बी और सी रिपोर्ट करेंगे कि हमें फंड्स रिसीव हुआ है, वो अल्टीमेटली इस चैनल के थ्रू रिसीव हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। और ऑडिटर्स के पास सबसे बड़ा मिनिस्ट्री ने क्या किया है, आजकल मिनिस्ट्री की आपने एक टेंडेंसी अगर नोट की होगी, मिनिस्ट्री कोई भी अमेंडमेंट करती है ना, तो कंपनी के साथ साथ ऑडिटर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है कि ऑडिटर्स की कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के मैनेजमेंट को तो डिस्क्लोजर देना ही है, बट ऑडिटर्स को उस डिस्क्लोजर पे रिपोर्ट करना है। देखिए आप इन्होंने पार्ट 3 में क्या लिखा, based on the audit procedure that the auditor has considered reasonable and appropriate in the circumstance, nothing has to come their notice has caused them to believe that representation under clause 1 of B does not contain any material misstatement। मतलब जो मैनेजमेंट ने क्लोज आई और क्लोज 2I, जो क्लोज ई के दो सब क्लोज आई और क्लोज डबल आई पे जो रिप्रेजेंटेशन दी है, ऑडिटर उसके ऊपर रिमार्क देगा कि वो रिप्रेजेंटेशन सही दी है, उसमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो ऑडिटर के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर को उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सो ऑडिटर चेक कैसे कर सकता है, ऑडिटर हैव टू चेक द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर हैव टू टेक अ रिप्रेजेंटेशन MRL फ्रॉम द कंपनी, and they have to check all the transaction of the company in which loan, advance, guarantee has given or received. This is the first new clause added in the auditor report। और एक चीज और एज अ प्रोफेशनल मैं बोलना चाहूंगा, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज आई एम इंडल्ज इन मैनी एक्टिविटीज विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी एक्टिविटीज मैं करता हूँ। उसके बेस पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ऑडिटर रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कभी भी लाइटली मत लेना। आपने रिसेंटली देखा होगा मिनिस्ट्री ने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अगेंस्ट नोटिस इशू किए हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं किया, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फ्रंट पेज पे फिगर्स कुछ और थी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वी कैन से नोट्स टू अकाउंट्स में फिगर कुछ और थी। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हमने रिसेंटली देखे हैं जहां पे मिनिस्ट्री डायरेक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पकड़ती है, जहां पे मिनिस्ट्री डायरेक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिस्पॉन्सिबल करती है। तो उन सभी चीजों को हमें कंसीडर करते हुए, उन सभी चीजों पे फोकस करते हुए चलना है कि हमें उस चीजों से दूर रहना है और हमें प्रॉपरली इस चीज पे फोकस करना है। Someone again mentioned, please share the presentation. So I'm again saying I will share the presentation with the Rajiv ji, Atul ji, Lokesh ji, so they can share with all the participants in this webinar. So first disclosure हमने डिस्कस कर लिया कि क्लोज डी तो डिलीट हो गया और एक क्लोज नया ई ऐड हो गया है। उसके बाद क्लोज एफ ऐड हुआ। क्लोज एफ देखो देखने में एक वन लाइनर है, whether the dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with the section 123। अगर हम आज तक बात करते हैं कंपनीज एक्ट 1956 की बात करते हैं या कंपनीज एक्ट 2013 की, प्रैक्टिकली हम बोलते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं या नहीं बने हैं, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिगार्डिंग जो भी कंप्लायंस करने थे या नहीं करने थे। बट लास्ट 7 ईयर में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, बस लास्ट 7 ईयर में जिस स्पीड से अमेंडमेंट आए हैं, उन अमेंडमेंट्स के थ्रू एक चीज क्या हो गई है, उन अमेंडमेंट्स के थ्रू एक चीज ये चीज हो गई है कि मिनिस्ट्री ने ऑडिटर्स के ऊपर बहुत सारे सेक्शंस के ऊपर रिपोर्टिंग भी डाल दी है। जैसे कारों की बात करते हैं, लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, आप लोग कारों में डिस्क्लोजर देते हो क्या 185 कंप्लाई किया या नहीं किया, 186 कंप्लाई किया या नहीं किया, मैनेजर रेम्युनरेशन का 196 कंप्लाई किया या नहीं किया। आपसे मिनिस्ट्री स्पेसिफिक सेक्शंस के ऊपर रिपोर्टिंग मांग रही है। ऐसे मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड कर दिया है, दैट इज सेक्शन 123। अब ऑडिटर्स को सेक्शन 123 की प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इवन आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द CIRC और सनी भाई कि आप लोगों को एक सेशन सेपरेटली इस पे कराना चाहिए कि सेक्शन 123 क्या होता है और सेक्शन 123 के क्या क्या कंप्लायंसेस है, क्या क्या प्रोसेस है जो एक ऑडिटर को चेक करने चाहिए। बिकॉज अब ऑडिटर रिपोर्ट का ये एक पार्ट बन गया है कि आपको रिपोर्टिंग करना है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, चाहे वो फाइनल डिविडेंड है चाहे वो इंटरिम डिविडेंड है, तो कंपनी ने जो फाइनल या इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके लिए क्या प्रॉपरली सारे कंप्लायंस कंपनी लॉ के किए या नहीं किए। एग्जांपल देता हूं एक छोटा सा, कंपनी लॉ में लिखा है जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 5 दिन के अंदर
एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेगी डिविडेंड के नेम से और सारा पैसा उसमें ट्रांसफर कर देगी और शेयर होल्डर्स को वहां से ट्रांसफर होगा। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज मैंने देखी है जो डिविडेंड तो डिक्लेयर कर देती है, बट वो बोलती है हमारे 2-4 तो शेयर होल्डर, हम सेपरेट बैंक अकाउंट क्यों खोले, हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं। बट लॉ ये अलाउ नहीं करता। लॉ में लिखा है कि आपको सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है, सेपरेट बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपको उस चीज को ट्रांसफर करना पड़ेगा, उस अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो दिस थिंग इज देयर। नाउ आप लोगों को स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा डिविडेंड के ऊपर भी अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में। तो अगर आप लोगों को 123 आता है तो बहुत अच्छी चीज है। 123 में कहीं डाउट है तो उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर है कि कैसे आप 123 के कंप्लायंस को वेरीफाई करते हो। नेक्स्ट जो थर्ड क्लोज ऐड हुआ है वो क्लोज जी। अभी हम क्लोज जी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज जो 21-22 की बैलेंस शीट है उस पर क्लोज जी नहीं लगेगा। क्लोज जी रिलेटेड बात करता है ऑडिट ट्रेल की। आप लोगों को पता होगा एक ऑडिट ट्रेल का भी नया कंसेप्ट आया है जो एप्लीकेबल होने वाला था 1 अप्रैल 22 से, बट मिनिस्ट्री ने उसको एक्सटेंड कर दिया है कि अभी ऑडिट ट्रेल 1 अप्रैल 22 से एप्लीकेबल नहीं होगी, ऑडिट ट्रेल 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल होगी। तो ऑडिट ट्रेल में तो मिनिस्ट्री ने अभी आप लोगों को रिलैक्सेशन दे दिया है। तो इस साल जब आप ऑडिटर रिपोर्ट बनाएंगे तो रूल 11 में क्लोज डी जो स्पेसिफाइड बैंक नोट है उसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है आपको, बट अभी क्लोज ई और एफ जो हमने डिस्कस किया इनकी डिटेल देना मैंडेटरी है। क्लोज जी की भी इस साल आपको नहीं देनी है, क्लोज जी की एप्लीकेबिलिटी आएगी 2024 से। सो दीज आर द अमेंडमेंट अंडर द ऑडिटर रिपोर्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है अमेंडमेंट इनटू ऑडिटर रिपोर्ट, प्लीज आप पूछिए, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, because we are here to discuss with all of you all the question, all the queries. किसी का कोई क्वेश्चन आया भी हुआ है, लास्ट ईयर we could not file ADT 1, so now what can be the remedy? सर अगर कोई फॉर्म आप फाइल करना भूल गए हैं या फॉर्म नहीं फाइल किया है उसके लिए तो एक ही रेमेडी है कि आप आज की डेट में लेट फीस के साथ उसको फाइल कर सकते हो। दैट्स द ओनली रेमेडी फॉर दैट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अतुल मेहता जी का आया हुआ है, whether advance against supplies are made to the company, whether this clause will apply। हाँ अब देखो एडवांस अगेंस्ट सप्लाई की बात करते हैं तो आपने एडवांस सर्विसेज या गुड्स लेने थे सी से, आपने एडवांस दिया बी को, बी ने एडवांस दिया सी को, जबकि आप डायरेक्टली सी को देके कर सकते थे, तो वो ट्रांजेक्शन भी आपको प्रैक्टिकली यहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा। पर एक चीज मैं आप लोगों को और बोलना चाहूंगा, रिसेंटली yesterday only I was studying the guidance note issued by the we can say ICAI on the CARO, आप सॉरी ऑन दिस ऑडिटर रिपोर्ट, आप लोगों को वो स्टडी करना चाहिए। वो पूरा गाइडेंस नोट सिर्फ इन 2 या 3 क्लोजेस के ऊपर, और दे हैव ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड दैट गाइडेंस नोट, जिसके बेस पे आप इन चीजों को चेक कर सकते हो। अभी सीमा जी का एक क्वेश्चन आया है, एज पर एग्जांपल हाउ ऑडिटर ऑफ ए कैन चेक लोन ऑफ सी। यस एग्जैक्टली, सबसे बड़ा इशू यही है कि मैं तो एक ऑडिटर हूँ, मैं इतना तो चेक कर पाऊंगा कि ए ने बी को लोन एडवांस गारंटी इन्वेस्टमेंट किया है, बट बी ने आगे ए के ब्याज पे किसी को दिया है या नहीं, मैं कैसे चेक कर पाऊंगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली ICAI शुड कम अप विद समथिंग कि कैसे ऑडिटर्स को आप पावर दिलवा सकते हो कंपनीज एक्ट में कि ऑडिटर कंपनी बी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी बी के ट्रांजैक्शंस को भी एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज देयर, whether this amendment is applicable for loan etc taken during 2021 or it is also applicable for loan taken earlier। प्रैक्टिकली हम जो डिस्क्लोजर देते हैं जो ऑडिटर रिपोर्ट में, वो ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शन की देते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है तो हम उसके ऊपर रिपोर्ट करेंगे, पुराने के ऊपर नहीं करेंगे। someone asked what if loan and advance are written off। सी अगर आपने लोन एंड एडवांसेस को रिटर्न ऑफ कर दिया है, बट रिटर्न ऑफ करने से पहले वो इस चैन के थ्रू जो हम बात करते हैं इंटरमीडिएटरी अल्टीमेटली बेनिफिशियरी वाले ट्रांजैक्शन से होके गया है, तो आपको इस पे रिपोर्ट करना चाहिए। दिस इज माय व्यू कि आपको रिपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज इसके लिए कहीं एग्जाम्पशन नहीं दिया है। someone mentioned it, advance to supplier is include the reporting requirement shall be very wide। सर आज की डेट में तो मिनिस्ट्री ने सिर्फ एडवांस वर्ड यूज किया है। एडवांस इज अ वेरी वाइड वर्ड, इट इंक्लूड एवरीथिंग। इन फ्यूचर अगर किसी रिप्रेजेंटेशन के बेस पे वो कोई एग्जम्पशंस देते हैं तो दैट इज ऑन यू, बट टुडे एज ऑन डेट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। Now let me move to my second topic, amendment in the schedule 3। As I already said, schedule 3 is relating to the financial statement। schedule 3 का मतलब ही है कि financial statement, that is आप कैसे P&L बनाएंगे और कैसे आप अपना बैलेंस शीट बनाएंगे। This is the only meaning of the schedule 3।
तो शेड्यूल 3 को अगर हम देखते हैं तो शेड्यूल 3 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। मिनिस्ट्री ने शेड्यूल 3 को 3 पार्ट्स पे डिवाइड किया है, पार्ट डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। शेड्यूल 3 को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ, डिवीजन 1 में कौन सी कंपनीज फॉल करती है, डिवीजन 2 में कौन सी कंपनीज फॉल करती है और डिवीजन 3 में कौन सी। डिवीजन 1, financial statement for a company whose financial statement are required to comply with the company's accounting standard rules 2006। अगर आपके ऊपर AS 2006 लगते हैं तो आप डिवीजन 1 में फॉल करते हो। Second, financial statement for a company whose financial statement are drawn up in a compliance of the company's Ind AS। अगर आपके ऊपर AS लगते हैं, AS 2006, तो आप डिवीजन 1 में फॉल करते हो। आपके ऊपर Ind AS 2015 लगते हैं तो आप डिवीजन 2 में फॉल करते हो। और आप एक NBFC हो और आप पे Ind AS लगते हैं तो आप डिवीजन 3 में फॉल करते हो। मतलब अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली इंडिया की 90% कंपनी डिवीजन 1 में फॉल करती है जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं। 10% कंपनीज आर देयर जिनके ऊपर Ind AS लगते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में, इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिवीजन 1 अमेंडमेंट्स। सबसे पहला अमेंडमेंट जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप सभी को फॉलो करने हैं, दैट इज रिलेटिंग टू द राउंडिंग ऑफ। इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट इट इज ऑप्शन टू डू राउंडिंग ऑफ फिगर्स टिल फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021। अभी क्या था, जब तक हम 31 मार्च 2021 तक जब तक बैलेंस शीट बनाते थे ना, राउंडिंग ऑफ के प्रोविजन थे शेड्यूल 3 में, बट ऑप्शनल थे, मैंडेटरी नहीं थे। बट अब जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, जो 31 मार्च 22 को खत्म हुआ है, जिसके अब हम फाइनेंशियल्स बनाएंगे, द राउंडिंग ऑफ को मिनिस्ट्री ने मैंडेटरी कर दिया है। और राउंडिंग ऑफ के लिए आपको एक गाइडलाइंस भी दी है, जैसा मैंने बोला जनरल इंस्ट्रक्शन। इफ योर टोटल इनकम, दे आर नॉट सेइंग टर्नओवर, दे आर सेइंग टोटल इनकम लेस देन 100 crore rupees, then your round off will be nearest 100, 1000, lakhs, million or decimal thereof. If your total income is 100 crore or more, then your rounding off will be nearest lakhs, millions, crore or decimal thereof. तो जो आपके राउंडिंग ऑफ के प्रोविजंस है ना, कि अगर आपकी 100 करोड़ से नीचे नीचे टोटल इनकम है तो आप इन सभी डिनोमिनेशंस के अंदर आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। बट आपकी टर्नओवर टोटल इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आप 100 या थाउजेंड्स में राउंड ऑफ नहीं कर सकते। आप राउंड ऑफ करोगे लैक्स में, मिलियंस में और डेसिमल्स में, तो आप नहीं कर सकते हो। तो ये प्रोविजन मिनिस्ट्री ने मैंडेटरी कर दिया है। 2021 तक हम बोल सकते हैं ये एक रिकमेंडेटरी और ऑप्शनल प्रोविजन था, बट नाउ दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। तो हमारी इस साल की बैलेंस शीट जो अब हम बनाने वाले हैं, हम सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि उनके ऊपर राउंडिंग ऑफ मैंडेटरी हो गया है। होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अगेन आई एम सेइंग गाइस, as I can say almost more than 350 participants are there। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, प्लीज चैट बॉक्स में लिखते जाइए। आई विल टेक अप डिस्कशन टिल 5:30। उसके बाद 15-20 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे क्वेरीज। वो जितना आप क्वेरीज पूछोगे ना, वो नो डाउट आपका तो डाउट क्लियर करेंगे, किसी दूसरे का भी डाउट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। चलो अब वन बाय वन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। एडिशनल डिस्क्लोजर, एडिशनल डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट। Someone mentioned if there is no income but expenses, are there round off will be applicable? See देखो, अगर सिर्फ इनकम ही नहीं है, एक्सपेंसेस है, तो आप माना जाओगे लेस देन 100 करोड़ में आ रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन एप्लीकेबल अपने ऊपर करोगे। Someone mentioned what is the definition of total income? मिनिस्ट्री ने टोटल इनकम की कोई डेफिनेशन नहीं दी है, टर्नओवर की होती है। टोटल इनकम जो एक सिंपल वर्ड है, इससे समझ आता है टोटल इनकम मींस ऑल द इनकम्स ऑफ द कंपनी, चाहे वो बिजनेस पर्पज से हो जैसे कि गुड्स या सर्विसेज से, या वो आपकी इनकम जो है वो चाहे हम बोल सकते हैं कि आपकी इंटरेस्ट इनकम हो, आपकी रेंटल इनकम हो, मतलब मेन ऑब्जेक्ट से इनकम हो और अदर ऑब्जेक्ट से इनकम हो, ऑल द इनकम शैल बी कंसीडर एज अ टोटल इनकम। टर्नओवर की जब हम बात करते तो वहां तो हम बात करते थे टोटल जो बिजनेस से मेन बिजनेस आता, बट यहाँ टोटल इनकम इंक्लूड एवरीथिंग। सो होप टोटल इनकम इज क्लियर, बिकॉज कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मिनिस्ट्री ने टोटल इनकम के ऊपर नहीं किया है,
तो each and every type of income of the company shall be considered as a total income before all the taxation and the expenses, that will be the income. Next point, अब important disclosures, अब हम one by one discuss करेंगे कि क्या ऐसे नए disclosure है जो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने चाहिए, जो इस साल आप लोगों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। देखो जनरली हमें पता है एज पर लॉ, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर्स की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू डू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बट जनरली ऑडिटर्स करते हैं, हमें पता है और बनाना पड़ता है। एक चीज मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गाइस प्लीज क्वेश्चन जितने भी है ना वो Q&A में मेंशन करिए, चैट बॉक्स में क्वेश्चन मत मेंशन करिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। Q&A में जितने भी होंगे वी विल टेक अप ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। सो सबसे पहला नया डिस्क्लोजर आया है शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर। आज तक आप लोग जब भी बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो, उसमें आप शेयर होल्डिंग देते हो, शेयर होल्डिंग ऑफ द शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ द शेयर्स, अभी तक उनकी शेयर होल्डिंग आप देते हुए आए हो। बट अब एक नया डिस्क्लोजर ऐड हो गया, शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर। इसके लिए पहला मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोटर? हु आर प्रमोटर्स एज पर यू? अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। 350 लोग हैं इस टाइम मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आई वांट टू सी कि आप लोग एक्टिव हैं नहीं है। वेबिनार के साथ ना एक ही चीज है कि हमें सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर्स के आंसर से पता चल सकता है कि अगर हम बात करते हैं हु आर द, अगर हम बात करते हैं कि प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो प्रमोटर्स की बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे काफी सारे आंसर मेरे पास आए हैं। समवंस एंड फाउंडर, कुछ ने बोला है हु डेवलप द कंपनी, समवंस एंड हु इनिशियली सब्सक्राइब द कैपिटल, फर्स्ट शेयर होल्डर, ओरिजिनल शेयर होल्डर जिसका नाम MOA में लिखा हो, who has given initial subscription, one who is the first shareholder of the company at the time of incorporation, initial shareholder, initial person, owner and founder, who do preliminary work, promoter are those who have initially invested। तो देखिए बहुत सारे आंसर आए हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर द पार्टिसिपेशन। अब जब भी हम बात करते हैं प्रमोटर कौन होगा, जब भी हम ये बात करते हैं ना कि प्रमोटर कौन होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देने के लिए पता तो हो कि प्रमोटर कौन है। और जनरली प्रमोटर से ना किसी भी प्रोफेशनल को आप बिठा लो, प्रमोटर बोलते ही फर्स्ट चीज माइंड में क्लिक करती है कि प्रमोटर मींस जिसने कंपनी बनाई है, या जो इनिशियल शेयर होल्डर था, जो कंपनी चलाता है वही प्रमोटर है। बट नहीं, हमें अपनी जनरल लैंग्वेज पे, जनरल डेफिनेशन पे नहीं जाना, हमें लॉ की लैंग्वेज पे, लॉ की डेफिनेशन पे जाना है कि लॉ के अकॉर्डिंग कौन है प्रमोटर। तो जब हम लॉ की बात करते हैं, कंपनीज एक्ट की बात करते हैं कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रमोटर कौन से हैं, तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट आता है प्रमोटर की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 69 में दी हुई है। प्रमोटर मींस द पर्सन हुज नेम हैज बीन एंटर इनटू द एनुअल रिटर्न। आप लोग जितनी भी कंपनीज की ऑडिट करते हो, वो सभी कंपनीज MGT 7 फाइल करती होगी, एनुअल रिटर्न फाइल करती है। उस MGT 7 में एक क्वेश्चन आता है कि आप डायरेक्टर्स के सामने, शेयर होल्डर के सामने ऑप्शन आता है कि प्रमोटर है या नहीं है, वो पूछता है। सो आपने जिस भी पर्सन का नाम एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर डाला है, वो पर्सन आपका प्रमोटर माना जाएगा। अब मैटर नहीं करता कि वो पर्सन ने कंपनी बनाई है या नहीं बनाई है, या उसकी इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलते हैं या नहीं चलते हैं। हो सकता है वो कंपनी का शेयर होल्डर ही ना हो, वो सिर्फ डायरेक्टर है, बट आपने प्रमोटर में डाला हो। तो जिस पर्सन का नाम आपने MGT 7 में एज अ प्रमोटर लिखा है, वही पर्सन आपका प्रमोटर माना जाएगा। तो इस साल जब बैलेंस शीट बनाएंगे, जब आपको ये डिस्क्लोजर, ये टेबल बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट में, तो मेक श्योर कि जब आप ये टेबल बनाएंगे तो आपको प्रमोटर में अपनी डेफिनेशन नहीं लगानी है। आप प्रमोटर में मीनिंग उसी पर्सन को लेके चलोगे। आप कंपनी का MGT 7 खोल के देखोगे जो सितंबर अक्टूबर में फाइल हुआ होगा,
कि MGD 7 में किसे प्रमोटर दिखाया है। जिसको भी प्रमोटर दिखाया है, जो भी XYZ को प्रमोटर दिखाया है, उसकी शेयर होल्डिंग आपको यहाँ देनी पड़ेगी। आपको लगता है कि यार ये तो गलत दिखाया हुआ है, ये पर्सन तो कंपनी का प्रमोटर है ही नहीं, तो 22 की बैलेंस शीट के लिए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ईयर के लिए आप एक काम कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर के लिए जब नेक्स्ट ईयर एनुअल रिटर्न फाइल करोगे ना, उसमें आप प्रमोटर्स के नाम चेंज कर देना, प्रमोटर्स को चेंज कर देना। पर आज की डेट में आपके पास ऑप्शन नहीं है। आज की डेट में तो जो आपके पास पर्सन है, जो आपके पास पर्सन का नाम एनुअल रिटर्न में है, वही आपका प्रमोटर माना जाएगा। सो होप इट इज क्लियर कि प्रमोटर कौन होता है। अब डिटेल्स क्या देनी है, आपको प्रमोटर का नाम लिखना है एक टेबल बना के, वो कितने शेयर होल्ड करता है, उसके परसेंटेज ऑफ शेयर कितने हैं एट द एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा हूं मैं, और चेंज ऑफ द परसेंट कितना हुआ। हो सकता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कुछ और था, मतलब लास्ट ईयर के एंड पे शेयर होल्डिंग कुछ ही और थी, आज के एंड पे कुछ और है, तो आपको परसेंटेज देना पड़ेगा कितने परसेंट उसकी शेयर होल्डिंग में चेंज आया है। और कुछ और चीजें भी यहाँ, Here management shall give details separately for each class of share. अगर कंपनी ने एक से ज्यादा क्लास के शेयर है कंपनी के, मान लो मेरे पास इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, प्रेफरेंस में भी 2-3 अलग-अलग क्लासेस के हैं, प्रेफरेंस शेयर विद कम्युलेटिव डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर विद विदाउट डिविडेंड, जितनी क्लासेस के अलग शेयर्स है उतनी अलग-अलग टेबल्स बनेगी। अगर प्रमोटर्स के पास है तो ईच क्लास ऑफ शेयर के लिए सेपरेट डिस्क्लोजर बनेगा। एंड जैसा मैंने बताया, परसेंटेज ड्यूरिंग द ईयर जो चेंज हुआ है उसके बेस पे काउंट होगा। तो अब ये एक नई चीज ऐड ऑन हो गई है सभी के लिए। और 31 मार्च 22 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं, हर साल क्या होगा, आपको एक साल की फिगर्स के साथ एक साल के डाटा का ये बनाना पड़ेगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर का तो आपके पास अवेलेबल होगा, बट इस ईयर आपके पास प्रीवियस ईयर का भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये पहली बार प्रोविजन आया है। तो इस ईयर आप जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो आपको 31 मार्च 21 की भी डिटेल देनी पड़ेगी, 31 मार्च 22 की भी डिटेल देनी पड़ेगी। दिस इज द थिंग यू हैव टू डू, इस चीज को तो आपको करना ही पड़ेगा, ये आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, 2-3 क्वेश्चन आए हैं इस पॉइंट पे, वो मैं साथ में साथ टेकअप करना चाहता हूँ ताकि क्लैरिटी बनी रहे। MGD 7 में प्रमोटर के नेम के लिए कोई रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप शेयर होल्डर, जिस शेयर होल्डर को चाहो उसके आगे प्रमोटर उसको मेंशन कर सकते हो, जिस डायरेक्टर को चाहो मेंशन कर सकते हो। बट क्या है कि MGD 7 तो आ गया था 2014 में, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, कुछ भी चलता जा रहा है प्रमोटर्स में, बट अब ध्यान देना पड़ेगा कि कौन प्रमोटर्स है और कौन प्रमोटर्स नहीं है। हाँ, अब किसी ने पूछा है MGD 7 फॉर 2021 विल बी कंसीडर फॉर 2021। नहीं, देखिए क्या है, आप ऑलरेडी जो MGD 7 ड्यूरिंग द ईयर फाइल किया था ना, उसमें जिसको प्रमोटर माना था ना, वही पर्सन इस साल अब जो आप बैलेंस शीट बनाओगे उसके लिए प्रमोटर माना जाएगा। Someone mentioned in case of first year of company whose shareholding to be mentioned as promoter. हाँ, this is a very good question. अगर फर्स्ट ईयर है तो आप जिसको प्रमोटर MGD 7 में दिखाने जा रहे हो, क्योंकि बैलेंस शीट के साथ साथ ये MGD 7 भी फाइल करना है, तो उसी पर्सन के आप शेयर होल्डिंग एज अ प्रमोटर यहाँ पे मेंशन कीजिए। हाँ, someone mentioned what are the criteria management to define someone as promoter? देखो सर, लॉ ने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है। हाँ, अब बात आती है मैनेजमेंट कैसे चूज करे, तो मैनेजमेंट तो इसी बेस पे चूज करेगा कि कौन पर्सन कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, किसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड चल रही है, किसकी ज्यादा शेयर होल्डिंग है, ऐसे फैक्टर्स को लेके आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन प्रमोटर बनेगा कंपनी का। Someone mentioned shareholding of promoter disclosure are to be given for 2 years for the current year. तो ये आंसर मैं दे चुका हूँ। आप कंपनीज एक्ट में जो भी डिस्क्लोजर देते हो नोट्स टू अकाउंट में, वो 2 सालों का ही देते हो, 1 सालों के डिस्क्लोजर नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा किसी ने मेंशन किया था, आंसर्स किया हुआ है, ठीक है, ये नहीं। इफ स्मॉल कंपनी वांट टू गिव, ये भी नहीं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग ऑफ प्रमोटर्स? पर्पस क्या है प्रमोटर डिक्लेयर करने का? जो मिनिस्ट्री का पर्पस है ना, दे वांट टू नो कि कौन आपकी कंपनी के प्रमोटर्स है, कौन, तो वो MGD 7 से चेक कर लेगी। अब वो देखना चाहती है कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग थी कितनी ड्यूरिंग द ईयर आपने चेंज की है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, ओनली पर्पस इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, वो इस चीज के थ्रू ट्रांसपेरेंसी को नेक्स्ट लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन आस्क इज SR और OR चाहिए? किसी को कोई स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके प्रमोटर? नहीं, आपको कोई SR OR नहीं चाहिए। आप जनरली बोर्ड में टेक नोट कर सकते हो कि दिस पर्सन विल बी आवर प्रमोटर, और उनका नाम आप डाल सकते हो क्या बोलते हैं अपने MGD 7 में। हाँ, समवन आस्क
whether promoter shareholding include promoter relative shareholding, तो I will say नहीं, promoter में promoter की shareholding include करनी है, उसके relative की shareholding आपको नहीं लेनी है। नेक्स्ट डिस्क्लोजर की बात करें, डिस्क्लोजर नंबर 1 अभी हमने डिस्कस किया, सिर्फ एक ही डिस्क्लोजर, ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल। दिस इज आल्सो अ न्यू डिस्क्लोजर। दिस न्यू डिस्क्लोजर इज ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल। अब ये बोलता है कंपनी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एजिंग शेड्यूल फॉर द ट्रेड पेबल ड्यूज फॉर पीरियडिसिटी 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, 3 to 4 year, and this will include MSMEs also. Even disclosure shall be made whether no due date of the payment is specified. तो हम इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, टेबल पे आते हैं। Hope this table is visible to all of you. अब देखो टेबल क्या बोलती है, आप लोग पहले भी ट्रेड पेबल्स की डिटेल देते थे, अब इन्होंने डिटेल्स को और वाइड कर दिया है, मतलब आप लोगों की मेहनत और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ऑडिटर्स की मेहनत को थोड़ा और बढ़ा दिया है। पहले हम जैसे ट्रेड पेबल्स की डिटेल देते थे, अब वैसे नहीं देनी है, अब ट्रेड पेबल की डिटेल इस फॉर्मेट में देनी है। ये फॉर्मेट क्या बोलता है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज, एमएसएमईज के जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो लिखो, अदर देन एमएसएमईज के हैं वो लिखो, एमएसएमईज के ऐसे ड्यूज जो डिस्प्यूटेड है वो लिखो, अदर के ऐसे ड्यूज जो डिस्प्यूटेड है वो लिखो। तो पहला काम तो हमें क्या करना पड़ेगा एज अ ऑडिटर, एज अ कंपनी, पहले जितने भी हमारे ट्रेड पेबल्स होंगे उनको हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा कि एमएसएमई कौन सा है, अदर कौन सा है, डिस्प्यूटेड एमएसएमई कौन सा है, डिस्प्यूटेड अदर्स कौन सा है। तो 4 पार्ट में हम पहले उसको ट्रेड पेबल्स को डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद अनदर 4 पार्ट में डिवाइड करना है एवरी पार्ट को। लेस देन 1 ईयर वालों का ड्यू कौन सा है वो यहाँ आ जाएगा, 1 to 2 years का ड्यू कौन सा वो यहाँ आ जाएगा, 2 to 3 years, मोर देन 3 years और टोटल। मतलब आप देखो कि वर्किंग कितनी इंक्रीज हो गई है। नो डाउट वर्किंग को काफी लेवल तक इंक्रीज कर दिया उन्होंने, कि अब उन्होंने बोला है कि आपको ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल में एमएसएमई का अलग देना है, अदर्स का अलग देना है, और उसमें भी अनडिस्प्यूटेड को अलग देना है, डिस्प्यूटेड को अलग देना है। उसमें फिर आपको डिवाइड भी करना है कि 1 साल से लेस कितना है, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से ज्यादा। अब देखो एमएसएमई एक्ट आप सभी ने रीड किया होगा, बिकॉज आप सब ऑडिटर्स हो, बैलेंस शीट बनाते आए हो, तो एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग तो आप सभी को बैलेंस शीट में आज तक 2006 से लेके 2022 आ गया है, हमेशा डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि ऐसी जो भी पेमेंट है जो आपके वेंडर को 45 दिन के बाद आपने किसी को की है या 45 दिन के बाद भी पेंडिंग है, उनका अलग डिस्क्लोजर देते हो। एक तरफ तो एमएसएमई एक्ट बोलता है आपको सिर्फ 45 डेज मिल रहे हैं किसी एमएसएमई वेंडर की पेमेंट करने में, 46th डे भी नहीं मिल रहा, 45 दिन के अंदर अंदर एमएसएमई वेंडर की आपको पेमेंट करनी है। और यहाँ आपसे पूछ रहा है लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर। मतलब अब जब आप यहाँ लेस देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में डिटेल डालेंगे ना, ये डाटा एमएसएमई अथॉरिटी पिकअप करेगी, उसके बेस पे कंपनीज को नोटिस इशू करने लगेगी कि आपने अपने एमएसएमई वेंडर को 45 दिन में पेमेंट नहीं दिया। जो डिस्प्यूटेड है वो ठीक है, और जो अनडिस्प्यूटेड है वहां पे आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली पर्पस क्या हुआ, मिनिस्ट्री ने ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर दी है। थर्ड अमेंडमेंट, थर्ड न्यू डिस्क्लोजर, ट्रेड रिसीवेबल्स। अभी हमने बात की थी ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल, अब इन्होंने कहा ट्रेड रिसीवेबल्स एजिंग शेड्यूल, और इसको तो इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले यहाँ 4 पार्ट, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड गुड्स, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड गुड्स, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड डाउटफुल। पहले तो इन 4 कैटेगरीज में सारे ट्रेड रिसीवेबल्स को डिवाइड करो। उसके बाद यहाँ पे 5 कैटेगरी बना दी है, लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 ईयर टू 3 ईयर, और मोर देन 3 ईयर। मतलब आप देखो प्रैक्टिकली जो बोलने का पर्पस है, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज करती है इन्होंने। ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नेक्स्ट लेवल इंक्रीज कर दी है कि ऑडिटर्स को, कंपनी को इतना डाटा बनाना पड़ेगा। पहले आपको इतनी बाइफिकेशन, इतना डाटा नहीं बनाना पड़ता था, बट अब वो बनाना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर्स के फिगर्स की भी आपको डिटेल बनानी पड़ेगी, चाहे प्रीवियस ईयर की ऑडिट आप दोबारा ही क्यों ना करनी पड़े, सिर्फ क्योंकि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट और P&L 2 सालों के बनते हैं, चाहे वो नोट्स टू अकाउंट्स भी हो, चाहे मेन पेज भी हो, बिकॉज उसी के बेस पे तो आप AOC4 फिल कर पाओगे, अदरवाइज तो AOC4 भी नहीं फिल कर पाओगे, XBRL भी नहीं फिल कर पाओगे। तो जो ये डाटा आपको 31 मार्च 22 का बनाना है, ये सेम डाटा 31 मार्च 21 का भी आपको कंपनी के रिकॉर्ड से बनाना पड़ेगा।
होप दिस थर्ड क्लॉज इज क्लियर। एक अगेन मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कुछ लोग अभी भी चैट बॉक्स में क्वेरी सेंड कर रहे हैं। बिल वाला कुछ आइटम था। ये भी मुझे समझ में नहीं आता, इसे बड़ी क्यों नहीं करते ये। कुछ लोग अभी भी क्वेरी बॉक्स में चैट बॉक्स में क्वेरीज भेज रहे हैं। प्लीज चैट बॉक्स में ना भेज के आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपनी क्वेरीज को वहीं भेज दीजिए Q&A सेशन में, सो दैट वो प्रॉपर्ली टेकअप हो पाएगी, अदरवाइज वो प्रॉपर्ली टेकअप नहीं हो पाएगी। फोर्थ डिस्क्लोजर, टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कंपनी ने अपने नेम से होल्ड नहीं की हुई है, जैसे यहाँ लिखा है कंपनी शैल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी whose title deeds are not held in the name of the company. Such immovable property is jointly held by the company with others. Detail are required to be given to the extent of the company share. अब कंपनी को, मैनेजमेंट को ये डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है जो कंपनी की है बट कंपनी के नाम पर नहीं है। उसके लिए देखिए कैसी टेबल बनानी पड़ेगी। रेलिवेंट लाइन आइटम इन द बैलेंस शीट, PPE, plant machinery, property, plant equipment, investment in property, PP retired from activity, and last one is the others. तो ऐसे चार पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, टाइटल डीड हेल्ड इन द नेम ऑफ, whether the deed holder is a promoter, director, or the relative, property held since which date, reason for not being held in the company. मतलब अल्टीमेटली क्या है, आपको ये टेबल देख के साफ साफ पता चल जाएगा कि मिनिस्ट्री ने बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर्स को बढ़ा दिया है और सिंपली वो क्या कर रही है, कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंक्रीज कर ही रही है, कंपनी के साथ साथ शेयर होल्डर ऑडिटर्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। अभी तक क्या था, पहले भी ये डिस्क्लोजर मांगते थे कि ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कंपनी के नाम पे नहीं है डिस्क्लोजर दो, बट अब वो बोल रहे हैं डिस्क्लोजर तो दो बट इस फॉर्मेट में उसे प्रॉपर्ली मेंशन करो। गवर्नमेंट वांट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट्स व्हाई जो स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में मैंने बोला था इस अमेंडमेंट के बाद क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। तो अभी तो हमने सिर्फ 4 क्लोज डिस्कस किया, आप 4 क्लोजेस में देख सकते हो कितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ चुकी है। तो अभी तक 18-19 क्लोज है, वहां तक जाते जाते तो फुल फ्लैश ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो चुकी होगी। सो दीज आर द 4 क्लोज। अब ये चौथे क्लोज पे हमने बात की थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। डिस्क्लोजर नंबर 1, revaluation of asset, where the company has revalued their property, their plant, their equipment, PPE. The company shall disclose as to whether the revaluation is based on the valuation by the registered valuer. अब एक बहुत सिंपल पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कंपनीज एक्ट में अगर आप कोई भी वैल्यूएशन करवाते हो तो कौन कौन कर सकता है? Who are allowed to do the valuation under Companies Act? किस किस पर्सन को कंपनीज एक्ट में वैल्यूएशन करना अलाउड है? Who are allowed to do the valuation under Companies Act? Okay, first answer I have received IBBI approved person, professional. Okay. Any other view? Companies Act में चाहे आपको शेयर्स की वैल्यूएशन करवानी हो, चाहे प्रॉपर्टी की, चाहे प्लांट की, चाहे इक्विपमेंट की, कंपनीज एक्ट में वैल्यूएशन कौन कर सकता है? तो अनदर आंसर इज IBBI वैल्यूअर। तो हम एक सिंपल बोल सकते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर विद द IBBI, जिसने IBBI का एग्जाम क्लियर किया हो और IBBI में रजिस्टर्ड हो। कंपनीज एक्ट में सिर्फ वही वैल्यूएशन कर सकता है। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर देना है कि अगर कंपनी की बैलेंस शीट में आप डालते हो कि कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को रिवैल्यू करवाया है, तो आपको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना है कंपनी को स्पेसिफिक अपनी बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर देना है, क्या ये वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यू ने की है या नहीं की है। अगर रजिस्टर्ड वैल्यू ने नहीं की तो डेफिनेटली इट विल बी कंसीडर्ड, देन डेफिनेटली जो आपके रीवैल्यूड अमाउंट है उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज कंपनीज एक्ट जो सिर्फ और सिर्फ एग्री करता है, कंपनीज एक्ट जो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करता है, वो वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर को ही एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्लॉज डिस्क्लोजर, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज थोड़ा फोकस रखिएगा। डिस्क्लोजर ऑन लोन्स एडवांसेस टू डायरेक्टर, KMP, रिलेटेड पार्टी, प्रमोटर्स। सबसे पहले KMPs कौन होते हैं? KMP मींस मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर, CEO, CFO प्लस मैनेजर। ये 5 कैटेगरीज होती है हमारी KMP। रिलेटेड पार्टी, अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जो ये डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी है,
यहाँ पे रिलेटेड पार्टी एज पर कंपनीज एक्ट लेंगे या रिलेटेड पार्टी एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेंगे? नीड योर व्यूज। यहाँ पे रिलेटेड पार्टी एज पर कंपनीज एक्ट लेंगे या एक आया अभिनव जैन जी का कि रिलेटेड पार्टी एज पर कंपनीज एक्ट लेंगे, 2 आंसर की कंपनीज एक्ट लेंगे, कंपनीज एक्ट। ठीक है, 3 से 4 5 आंसर आ गए हैं कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे जो भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की बात हो रही है, यहाँ कंपनीज एक्ट के रिलेटेड पार्टीज की बात कर रहे हैं एज पर इनकम टैक्स नहीं। अब डिस्क्लोजर क्या देना है? डिस्क्लोजर शैल बी मेड where loan advance in nature of loan are guaranteed to the promoter, director, KMP, related parties with the whether they are repayable on demand, whether specifying term or without specifying term। ये टेबल पूरी बनानी पड़ेगी। तो कितनी ज्यादा मेहनत इंक्रीज कर दिया ना इन्होंने, ऑडिटर्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मेहनत को इन्होंने कितने लेवल तक इंक्रीज कर दिया है कि पहले आप देखो कि लोन और एडवांस क्या आपने प्रमोटर को, डायरेक्टर को, केएमपी को या रिलेटेड पार्टी को दिया या नहीं दिया? दिया है तो उसका अमाउंट लिखो, अमाउंट ऑफ लोन एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, 31 मार्च को कितना आउटस्टैंडिंग है। फिर लिखो कि जो लोन दिया है वो कंपनी के टोटल लोन और एडवांस का कितना परसेंटेज उनको दिया है। अब एक चीज आती है, यहाँ इन्होंने लिखा है डायरेक्टर को लोन दिया है तो डिटेल डालो। डायरेक्टर को तो लोन देना अलाउड ही नहीं है 185 में। बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत वी कैन से सम कंडीशंस आर देयर जहां डायरेक्टर को लोन देना अलाउड है, अदरवाइज तो डायरेक्टर्स को तो लोन देना ही अलाउड नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे, अगर आपने यहाँ किसी कॉलम में भी लिख दिया ना कि इनमें से किसी को भी लोन दिया है, तो सिर्फ इतना मत मानना कि लोन दिया लिख दिया है, बहुत सारे बैकग्राउंड कंप्लायंस करने पड़ेंगे कंपनीज एक्ट के। आज प्रमोटर को लोन दिया है तो सेक्शन 179 देखना पड़ेगा, सेक्शन 185 देखना पड़ेगा, सेक्शन 186 देखना पड़ेगा, सेम विद द केएमपी, रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर। तो यहाँ पे एक फिगर लिखना सिर्फ टास्क नहीं है, उस फिगर को लिखने के बाद उसके बैकग्राउंड कंप्लायंस हुए या नहीं हुए वो चेक करना टास्क है। नेक्स्ट डिस्क्लोजर ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड। Any proceeding has been initiated or pending against the entity under बेनामी एक्ट। अगर कंपनी के ऊपर बेनामी एक्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है या पेंडिंग चल रही है तो कंपनी को ये सभी डिटेल्स देनी है। डिटेल ऑफ सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ईयर ऑफ एक्विजिशन, अमाउंट thereof, डिटेल ऑफ बेनिफिशियरीज, if property is in the book, the reference the book, property is not in the book। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में देनी है। या कोई बैंक की बात कर लें, आपकी बैलेंस शीट रीड करता है, आपकी नोट्स अकाउंट रीड करता है, उसको पता चल जाएगा कि बेनामी एक्ट में भी आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या नहीं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज सुबह मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये पॉइंट डिस्कस कर रहा था, डिटेल ऑफ बोरोइंग। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ फिर एनालिसिस करते हैं। इफ द कंपनी हैज बोरोड from bank or financial institution on the basis of the security of the current asset। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आप लोग तो रेगुलर ट्रांजैक्शंस देखते हो जब ऑडिट्स करते हो, कि कंपनीज बहुत बार बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है। उन लोन के लिए वो कंपनी की करंट एसेट को एज अ सिक्योरिटी देती है। मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और कंपनी की जो करंट एसेट है ना उसको एज अ सिक्योरिटी रख दिया उस लोन के लिए। तो कंपनी को बिलो मेंशन इंफॉर्मेशन देनी है। Whether quarterly return or statement of the current asset filed by the company with the bank and financial institution are in the agreement with the books of account। अब ये बोलते हैं, देखो मेरे से ज्यादा ये पॉइंट आप लोग अच्छे से मतलब समझ पाएंगे। जब कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है ऑन करंट एसेट, बैंक को एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, सॉरी कंपनी को एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कि कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग करंट एसेट एट द एंड ऑफ द क्वार्टर क्या है। अब लो ये बोलता है जो आप ये क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करोगे उस क्वार्टरली स्टेटमेंट में आपकी इंफॉर्मेशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट होनी चाहिए। मींस क्वार्टरली स्टेटमेंट में आपने जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो स्टेटमेंट्स आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से वो फिगर मैच होनी चाहिए। अगर देखो, अगर आपकी क्वार्टरली स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट की फिगर से मैच हो रहे हैं तो क्या होगा, जब साल के लास्ट में जब आप फिगर्स बनाओगे करंट एसेट्स का तो आपकी चारों क्वार्टरली रिपोर्ट्स को मिला लेंगे और करंट एसेट्स की फिगर को मिला लेंगे, कोई मिसमैच नहीं आएगा। यही इन्होंने बोला कि आपको अपनी बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में लिखना है द क्वार्टरली रिटर्न एंड द स्टेटमेंट ऑफ द करंट एसेट फाइल्ड बाय द कंपनी विद द बैंक
आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट कि जो आपने क्वार्टरली स्टेटमेंट बैंक के साथ फाइल किए थे वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहे हैं। बट if they are not matching with the books of account, summary of reconciliation and reason of material discrepancy if any to be adequate disclosed। अब ये क्या बोलता है? अब देखो हम प्रैक्टिकलिटीज पे आते हैं लॉ को छोड़ के। प्रैक्टिकलिटीज में आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने देखा होगा जब कंपनीज बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक क्वार्टरली स्टेटमेंट देती है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट से बनाती तक नहीं है, ओवरऑल आइडिया ले लेती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और स्टेटमेंट सबमिट कर देती है। बट अगर हम बात करें कि प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके तो 90% कंपनीज नहीं करती है। तो उस केस में डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप रिकंसाइल करोगे डिफरेंस आएगा ही आएगा फिगर्स में, अमाउंट्स में। तब अब आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि क्यों इनमें डिफरेंस आ रहा है। तो इससे एक बहुत चीज क्लियर होती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ऑडिटर्स को अपनी क्लाइंट कंपनीज को समझाना पड़ेगा कि भाई जो भी तुम स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हो, जो भी तुम क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हो उसकी फिगर एज इट इज बुक ऑफ अकाउंट से मैच होनी चाहिए। थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो आपको ईयरली रिकंसिलिएशन के टाइम डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है। तो इसके बेस पे मिनिस्ट्री एक्शन भी ले सकती है आपके अकॉर्डिंग कि आपने बैंक्स को सही डिस्क्लोजर्स नहीं दिया, आपने बैंक्स को रॉन्ग इंफॉर्मेशन सबमिट किया है, तो इट इज अ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। और कंपनी ने अगर लिख दिया डिस्क्रिपेंसी है तो आपको एज अ ऑडिटर रिपोर्ट में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कंपनी ने ये डिफॉल्ट किया है। सिर्फ इतना नहीं है ना यहाँ फिगर लिख दी और काम हो गया। यहाँ पे अगर लिख दिया कि डिस्क्रिपेंसी है, अगर यहाँ पे डाल दिया कि डिस्क्रिपेंसी है, तो उस चीज को आपको ऑडिटर रिपोर्ट में भी तो उसके ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि डिस्क्रिपेंसी क्यों थी और क्या मेजर्स लिए गए। नेक्स्ट डिस्क्लोजर विलफुल डिफॉल्टर। Where a company is declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender, तो कंपनी को ये सारी डिटेल देनी है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ willful defaulter, डिटेल ऑफ डिफॉल्ट्स। Willful defaulter means a person or an issuer who which is categorized as willful defaulter by any bank, any financial institution as per the guidelines of the RBI। अब ये क्लोज पे प्लीज थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, बिकॉज एज अ कंपनी सेक्रेटरी मुझे लगता है कि ये क्लोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी, कि स्टॉक ऑफ कंपनीज के साथ क्या रिलेशन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम सभी को फोकस रखना है। अब ये पॉइंट बोलता है, अब आप लोगों को पता है पिछले 6-7 सालों में मिनिस्ट्री ने बहुत सारी कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ किया है और बहुत सारी कंपनी ने खुद को स्ट्राइक ऑफ कराया है। अब ये बोलता है वेयर द कंपनी हैज एनी ट्रांजैक्शन विद द कंपनी स्ट्रोक ऑफ अंडर 248 और 560 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी शैल गिव द फॉलोइंग डिटेल्स। अगर आपकी कंपनी स्ट्रक ऑफ, आपकी नहीं, आपने किसी भी ऐसी कंपनी का साथ ट्रांजैक्शन किया था जो स्ट्रक ऑफ हो चुकी है, तो आज तक तो आपको कोई मैटर नहीं करता था, हो गई तो हो गई, मुझे क्या मतलब है, बड़ा मतलब है। अब आपको ये टेबल बना के देनी पड़ेगी अगर ऐसी कोई कंपनी स्ट्रक ऑफ होती है तो। टेबल में सबसे पहले पूछता है नेम ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनी, ठीक है। उसके बाद पूछता है रिलेशन विद स्टॉक ऑफ कंपनी, मतलब क्या स्टॉक ऑफ कंपनी इन्वेस्टमेंट किया था आपने उसकी सिक्योरिटीज में, या स्टॉक ऑफ कंपनी ने आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट किया, कोई रिसीवेबल्स है, कोई पेबल्स है, कोई शेयर हेल्ड है, या कोई अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। बैलेंस लिखो और स्टॉक ऑफ कंपनी के साथ रिलेशन लिखो। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आंसर मैं दे ही देता हूँ साथ में। आपकी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 1000 कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शन किया, जिसमें से एट द एंड ऑफ द ईयर मैं बोलता हूँ 500 कंपनी का कुछ पेबल है, कुछ रिसीवेबल्स है, किसी के मेरे पास सिक्योरिटी है, किसी ने मेरे शेयर होल्ड किए हुए हैं। अब मुझे उन 500 कंपनीज का स्टेटस एक एक करके एमसी की साइड पे चेक करना पड़ेगा, वो स्ट्राइक ऑफ है या एक्टिव है, तो तभी तो मुझे पता चलेगा ये डिस्क्लोजर देना है या नहीं देना है। तो अब आप इसी चीज से अंदाजा लगाओ कि कितना ज्यादा वर्क आपके ऊपर बढ़ गया है कि एक एक क्लोज, एक एक कंपनी को आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि अगर वो स्टॉक ऑफ है तो उसकी डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा टास्क है और डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। आप अगर 50 कंपनीज के ऑडिटर हो, हर कंपनी में, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 100 कंपनीज के साथ भी वो ट्रांजेक्शन करती है, तो 50 into 100 5000 कंपनीज को आपको एमसी की साइट पे जाकर चेक करना पड़ेगा कि वो स्टॉक ऑफ है या एक्टिव है। जो स्टॉक ऑफ होगी उनकी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। गाइस प्लीज कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आप मेंशन करो। इट्स ऑलरेडी 5:20, मैं 10 मिनट्स और लूंगा डिस्कशन के ऊपर, फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को टेकअप करूंगा।
नेक्स्ट डिस्क्लोजर रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज। अब ये बोलता है वेयर एनी चार्ज और सेटिस्फेक्शन येट टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड डिटेल एंड रीजन देयरऑफ। अब क्या होता है, हमें पता है चार्ज क्रिएशन या चार्ज सेटिस्फेक्शन 30 दिन के अंदर करना होता है। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 30 दिन के अंदर चार्ज क्रिएशन या चार्ज सेटिस्फेक्शन करना होता है। चार्ज क्रिएशन या मॉडिफिकेशन के 30 दिन के अंदर। अब आपके 30 दिन क्रॉस हो गए और आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया और आपने चार्ज क्रिएट नहीं किया था, मतलब आपके 30 दिन क्रॉस होकर 31 मार्च भी आ गई, तो आपको अपनी बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा कि आपने चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन क्यों नहीं किया और क्यों डिले किया। मतलब देख लो कितने लेवल तक डिस्क्लोजर्स करवा रही है मिनिस्ट्री। अब नेक्स्ट, कंप्लायंस विद द नंबर ऑफ लेयर ऑफ कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 186 सबसेक्शन 1। आप लोगों को मैं बता देता हूं, कंपनीज एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप 2 लेयर ऑफ सब्सिडी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मतलब ए इन्वेस्टमेंट कर सकता है बी, बी के नीचे सी, दैट्स इट, सी के नीचे डी नहीं हो सकती। तो 2 लेयर ऑफ सब्सिडीज तक तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, एक ही लेयर पे बहुत सारा करना चाहो, ए की सब्सिडी बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, चल सकता है। तो ये कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है। अब जब आप ऑडिट करते हो, ऑडिट में आपको पता चलता है या मैनेजमेंट को ही पता है कि उनकी 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडी है, तो उनको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जो 2 लेयर के बाद नेक्स्ट सब्सिडी है, उसका नाम, सिन नंबर, उसके साथ रिलेशन, ये सारी चीजों पे उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो 2 लेयर से ज्यादा अगर सब्सिडी है तो उसका आपको डिस्क्लोजर प्रॉपरली देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजर ऑफ रेशो। ये रेशो वाला जो कॉलम है ना, 13 नंबर डिस्क्लोजर, ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज ये बोलता है द अमेंडमेंट्स रिक्वायर द कंपनीज कवर अंडर डिवीजन 1, 2, 3 टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग रेशो। आज तक बैलेंस शीट्स में आपको रेशोज नहीं देने पड़ते थे, अब आपको 11 रेशो बैलेंस शीट में देने पड़ेंगे, लाइक करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, डेट सर्विस रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 11 रेशो आपको लास्ट ईयर के भी और करंट ईयर के भी 11 के 11 रेशो आपको अपनी बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में देने पड़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, द कंपनी शैल प्रोवाइड explanation for any change in the ratio by more than 25%। अगर आपके लास्ट ईयर के रेशो से इस साल के रेशो में अगर 25% से ज्यादा चेंज आया है तो आपको उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मान लो नेट प्रॉफिट रेशो लास्ट ईयर था 10, इस साल हो गया 30, कि ऐसा क्यों है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोइंग फंड। अब ये एक बहुत सिंपल क्लॉज है, ये बोलता है कि आपने मनी बोरो किया है तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि जो बोरो किया है उसको किस पर्पस से यूटिलाइज किया है। बिकॉज यहाँ मिनिस्ट्री देखना चाहती है कि आपने जो बोरो किया है वो उस पर्पस से यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे पर्पस से यूटिलाइज कर रहे हो। तो यहाँ मिनिस्ट्री का बहुत सिंपल है कि जिस पर्पस से आपने लोन लिया है, लोन उसी पर्पस से यूटिलाइज होना चाहिए, और प्रीमियम भी आपने किस पर्पस से यूटिलाइज किया है ये भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। कंप्लायंस विद अप्रूव्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ये उस केस में लगेगा जहां पे भी आप बोल सकते हैं मर्जर और अमलगेशन हुआ है, तो स्कीम में जो अप्रूव हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने कंप्लायंस किए हैं नहीं किए हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए बोलता है शेड्यूल शैल बी गिवन, टोटल शैल टैली विद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंट इन द बैलेंस शीट। जो आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है उससे इसकी फिगर्स प्रॉपर्ली टैली होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमसे क्या क्या मांग रहे हैं, ये यहाँ पे मांग रहे हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट टेम्परेरी सस्पेंडेड, सभी की अलग अलग डिटेल देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इतने ज्यादा डिस्क्लोजर हो गया, जैसे हमने शुरू में बोला था कि पहले अगर बैलेंस शीट बनाने में जितना टाइम लगता था उससे 1.5 टाइम ज्यादा लगेगा, तो मुझे लगता है 1.5 टाइम कम बोला है, उससे डबल टाइम लगेगा इस साल बैलेंस शीट बनाने में। और इस साल तो आपको सिंगल ईयर के फिगर्स भी नहीं देने, डबल ईयर के फिगर्स देने हैं। पार्ट बी बोलता है फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस whose completion is overdue or has expected its cost compared to the original plan, following CWP complete schedule shall be given। तो उसका अलग से शेड्यूल आपको देना पड़ेगा। अभी तक जितने डिस्क्लोजर्स डिस्कस किए हैं ये सभी वो डिस्क्लोजर्स थे जो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट में देने थे।
मतलब इस साल जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, जब बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट बनाने लगोगे, पिछले साल तक जितने डिस्क्लोजर देते थे वो तो दे ही रहे हो आप, वो देने ही पड़ेंगे, बट ये कुछ नए डिस्क्लोजर्स भी आपको उसमें ऐड ऑन करने पड़ जाएंगे। अब बात करते हैं एडिशनल डिस्क्लोजर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडिशनल डिस्क्लोजर क्या है? सबसे पहला डिस्क्लोजर अनडिस्क्लोज इनकम, रिकंसिलिएशन ऑफ इनकम टैक्स एंड कंपनीज एक्ट। The company shall give a detail of any transaction not recorded in the books of account that has been surrendered, disclosed as income during the year in the tax assessment. अगर आपने लास्ट अपने बैलेंस शीट में इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया था, अब आपने वो इनकम सरेंडर की है या असेसमेंट के कारण वो इनकम डिस्क्लोज की है, तो उसको भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट में प्रॉपर्ली मेंशन करना पड़ेगा। Unless there is an immunity for disclosure under any scheme, and also shall state whether the previous unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year. तो आपकी असेसमेंट्स के कारण या सरेंडर के कारण कोई भी अनडिस्क्लोज इनकम है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर की है, तो उस अनडिस्क्लोज इनकम के लिए आपको प्रॉपर शेड्यूल देना पड़ेगा। Someone mentioned please share Excel format of the amendment and schedule 3 and Word format of disclosures. According to your thing, we can draft that. That's not an issue. CSR disclosure. आप CSR के लिए डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देते हो। आप CSR के लिए डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ साथ एक CSR अनेक्स्टर भी बनाते हो। अब उनके अलावा आपको एक CSR डिस्क्लोजर अपने P&L में भी देना पड़ेगा। तो जनरली एक सिंपल चीज है, सारे ऑडिटर्स को भी CSR का प्रोविजन सेक्शन 135 अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तभी ये डिस्क्लोजर वेरीफाई कर पाओगे। यहाँ बोलता है whether the company covered under section 135 of the Companies Act, the following shall be disclosed, like amount received to be spent by the company during the year, कितनी अमाउंट स्पेंड करनी थी, कितनी अमाउंट एक्सपेंडिचर किया, शॉर्टफॉल कितना है, टोटल प्रीवियस ईयर का शॉर्टफॉल कितना है, रीजन क्या है शॉर्टफॉल का, lot of things they are asking from you, you have to mention all this information. कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, भूल गया डिस्कस करना, मैंने काफी सारे सेशंस लिए हैं इस टॉपिक पे। एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि किसी कंपनी को क्या एग्जम्पशन है, लाइक स्मॉल कंपनी या 1% कंपनी या कुछ ऐसी कंपनीज, क्या किसी को एग्जम्पशन है कि वो इन डिस्क्लोजर्स को उन्हें नहीं देना? तो मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, ऑल द कंपनीज, चाहे आप एक 1% कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, नॉन स्मॉल हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, निजी हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी आप कंपनी हो, कोई टाइप ऑफ कंपनी, सभी कंपनीज को ये सभी डिस्क्लोजर 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट में देने हैं। नेक्स्ट इज डिटेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी, वेयर द कंपनी हैज ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी ड्यूरिंग द ईयर, फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांजैक्शन involving the cryptocurrency, virtual currency, amount of the currency held as a reportable debt, deposit or advance from any person for the purpose of trading or investing in the cryptocurrency. तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी ये डिटेल्स, ये डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे। तो बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट 14 to 15 डिस्क्लोजर्स है जो भी हमने डिस्कस किए, जो हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे, और P&L में ये 3 डिस्क्लोजर्स है जो हमें यहाँ पे मैंडेटरी देने पड़ेंगे। मतलब प्रैक्टिकली क्या है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि हम ये डिस्क्लोजर देंगे या नहीं देंगे, आपको ये डिस्क्लोजर देने ही पड़ेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके ऊपर कोई एग्जाम्पशन नहीं है, कोई टाइप ऑफ कंपनी को एग्जाम्पशन नहीं है, कोई टाइप ऑफ टर्नओवर को या ट्रांजैक्शन को एग्जाम्पशन नहीं है। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू गिव दिस डिस्क्लोजर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दीज आर द अमेंडमेंट अंडर द शेड्यूल 3। अब हम एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स को ले लेते हैं, तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है फ्रीली यू कैन आस्क। Question number 1, sir, 2022 year of balance sheet, is it required to disclose for 2021 also? Yes. जैसे मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि इस साल हमारे लिए टास्क थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, इस साल हमारे लिए टास्क थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस साल सिर्फ हमें 1 साल के डिस्क्लोजर नहीं बनाने हैं, इस साल हमें 2 साल के डिस्क्लोजर बनाने हैं इन द सेम फॉर्मेट। यस, इन द सेम फॉर्मेट, जो इस साल का फॉर्मेट बनाओगे सेम फॉर्मेट में पिछले साल के भी आपको डिस्क्लोजर देने हैं, उसके लिए आपके ऊपर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। समवन इज आस्किंग फॉर द एक्सेल फॉर्मेट, तो मैम एक जस्ट वन थिंग सर आई वांट टू टेल यू कि फॉर्मेट की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आप लिस्टेड कंपनीज की बैलेंस शीट स्टडी कर लेना, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कैसा बनाना है और वैसा आप भी ड्राफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether CSR expenses are to be provided on accrual basis। CSR expenses को जो प्रोवाइड करना है ना, आपको प्रोवाइड करना है कि 31 मार्च
मान लो आज 31 मार्च 22 खत्म हुआ है, तो उस साल में मुझे कितने करने थे, कितने किए, कितना शॉर्टफॉल है, उस साल का प्लस पिछले ईयर का मिला के कितने शॉर्टफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ कंपनी हैज गिवन लोन टू पार्टनरशिप फर्म इन विच पार्टनर्स आर डायरेक्टर वेदर इट हैज टू बी रिपोर्टेड। देखो ऐसा होता है, कोई भी लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट आप देते हो, आप रिपोर्ट तो करते हो, बट जो हमने अभी डिस्क्लोजर डिस्कस किया था ना, कि जिसमें या तो था कि लोन आप दे रहे हो डायरेक्टर को, केएमपीस को, प्रमोटर्स को, रिलेटेड पार्टी को। पार्टनर्स अगर रिलेटेड पार्टी में आते होंगे तो हमें उनका डिस्क्लोजर देना है, अदरवाइज उनका डिस्क्लोजर नहीं देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, whether it is mandatory to report all the disclosure mentioned under notes to accounts of schedule 3 whether were related to that companies or not। सर आपको सारे डिस्क्लोजर जितने भी इन्होंने अभी बताए हैं ना, जितने भी मैंने अभी डिस्कस किए हैं, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन डिस्क्लोजर्स के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। आपके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होते तो पहले भी आप नोट एप्लीकेबल या नील करके डालते थे, तो वैसे अब भी डालोगे। मान लो आज स्ट्राइक ऑफ है, आपकी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर किसी ऐसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन ही नहीं किया जो स्ट्राइक ऑफ है, तो आपको लेकिन लिखना तो पड़ेगा, डिस्क्लोज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनी एज कंपनी हैज नॉट डन एनी ट्रांजैक्शन विद एनी स्ट्राइक ऑफ कंपनी। तो डिस्क्लोजर तो आपको देना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ स्मॉल कंपनी वांट्स टू गिव फुल फिगर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द राउंडिंग ऑफ, कैन दे डू सो? अकॉर्डिंग टू मी नो। पहले तक राउंडिंग ऑफ की प्रोविजन, राउंडिंग ऑफ की फिगर्स करना एक ऑप्शनल चीज थी। आज की डेट में राउंडिंग ऑफ एक मैंडेटरी थिंग हो गया है कि आपको करना ही पड़ेगा। Someone mentioned, please explain MSME as per Companies Act। सर, कंपनीज एक्ट एमएसएमई के ऊपर साइलेंट है। कंपनीज एक्ट एमएसएमई के ऊपर कुछ नहीं बोलता है। एमएसएमई के एक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बोलता है तो वो एमएसएमई एक्ट बोलता है। और एमएसएमई एक्ट भी क्या बोलता है कि आपने किसी एमएसएमई वेंडर के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है तो डजंट मैटर आपने उसके साथ कितने दिन का एग्रीमेंट किया है, चाहे आपने 60 दिन का एग्रीमेंट किया है चाहे 90 दिन का एग्रीमेंट किया है, बट आपको उसकी पेमेंट तो 45 दिन के अंदर करनी ही है। 45 दिन में नहीं करते तो ये आपके पार्ट पे डिफॉल्ट है, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, बैलेंस शीट में भी प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 20 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। व्हाट इज डिस्प्यूटेड मींस? अगर डिस्प्यूटेड का मतलब है आपने किसी से गुड्स लिए, गुड्स की क्वालिटी सही नहीं आई है बट वो पर्सन मानने को रेडी नहीं है, तो आपने उस पर डिस्प्यूट रेज किया होगा, चाहे रिटर्न में चाहे उसके मेल के थ्रू, कोरियर के थ्रू आपने डिस्प्यूट रेज किया होगा। आपने कोई सर्विसेज लिया, प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिली है तो आपने डिस्प्यूट रेज किया होगा। तो यहाँ पे डिस्प्यूट का मतलब है कि आपको प्रॉपर उस चीज पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। तो डिस्प्यूट हो सकता है अभी आप लोगों के बीच में चल रहा हो या हो सकता है डिस्प्यूट कोर्ट तक भी चला गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी डज नॉट शो डिटेल्स ऑफ द एमएसएमई देन टू ट्रेस इट। सी देखो ऐसा है, एमएसएमई एक्ट बोलता है कि इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू फाइंड आउट द ट्रेस द एमएसएमई वेंडर, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑडिटर्स कि वो हर एक वेंडर का पता करे एमएसएमई में है नहीं है। तो उसके लिए तो आपको मैनेजमेंट के ऊपर ही बिलीव करके चलना पड़ेगा। हाँ, someone mentioned trade payable show in rupees or rounding off। Sir, all the figures in the balance sheet shall be rounding off। राउंडिंग ऑफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट पेज ऑफ बैलेंस शीट पे एप्लीकेबल होगा, राउंडिंग ऑफ के प्रोविजन फुल फ्लैश बैलेंस शीट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द प्रीवियस ईयर फिगर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रेजेंटेशन। सर, आप आज तक बैलेंस शीट बनाते हैं, यू ऑल आर मोर देन एक्सपर्ट मोर देन मी। आप आज तक हर बार बैलेंस शीट में 2 सालों के फिगर्स देते हैं, यहाँ पे भी आपको 2 सालों के फिगर्स देने पड़ेंगे, बट इस साल इशू ये है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इस साल नए फिगर्स आपको देने पड़ रहे हैं। Whether details is to be given if companies are trading in it। सर ये क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट नहीं है, आप प्लीज अगर इस क्वेश्चन को फुल फ्लैश मेंशन कर पाएंगे दोबारा तो आई विल एबल टू आंसर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट हियर, हाउ टू सब्सटेन दैट। सर डिस्प्यूट का हम डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग, कि डिस्प्यूट का मीनिंग क्या है कि आपने उस पर कोई डिस्प्यूट रेज किया हुआ है तो ये डिस्प्यूटेड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether total amount of debtor or creditor is to be given or with names of each and amount of each to be given। This question relating to which point of the financial statement are you asking, Sandeep ji? Next question is, if a company has no such immovable property held in the name of other, whether this table will be nil value। Yes, अगर कंपनी ने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो आप nil value पे आप उसको डील कर सकते हो।
Next is last year name given in MGT7. Now promoter has resigned before March 22. With the name of that person will be given there. देखो अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो रिजाइन तो किया होगा डायरेक्टर की पोस्ट से, शेयर होल्डिंग आज भी होगी। हाँ, शेयर होल्डिंग भी आज भी नहीं है तो भी आप एटलीस्ट फिर बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करो कि वो पर्सन ना ही आज के डेट में डायरेक्टर है ना ही शेयर होल्डर है, तो हम उसे प्रमोटर से भी रिमूव कर रहे हैं। दैट्स द ओनली ऑप्शन, अदरवाइज इस चीज का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। What is the revaluation date? I mean, it is for the financial year or audit of, it is for the financial year. आपको जो disclosure देने इस financial year की बात कर रहे हैं। What if the loan was given to director in the past year, but as a current date he is no more association with the company, where he will consider as this? No. जब आपने लोन दिया था डायरेक्टर था, इस फाइनेंशियल ईयर में वो पर्सन डायरेक्टर ही नहीं था, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको इस टेबल में उसका डिस्क्लोजर नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether the loan given to director etc in the earlier will be covered? हाँ सर, यहाँ तो टोटल अमाउंट मांगेगा ना, प्रीवियस प्लस टोटल कितना लोन दिया हुआ है, टोटल अमाउंट हमें डालनी पड़ेगी। Whether revised statement can be considered in this disclosure? Preeti ji, please can you just mention your question again with the full details? How auditor will know what quarterly statement it has filled with the bank? Whether receipt copy of the bank has to be, definitely they have to keep a copy with them. अगर उन्होंने कॉपी नहीं लिखी है तो ऑडिटर रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो आपको स्पेसिफिकली ऑडिटर रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि यू आर नॉट प्रोवाइडेड द कॉपी ऑफ द क्वार्टरली रिपोर्ट, सो यू कैन नॉट रिपोर्ट ऑन दिस पॉइंट। अपने आप को तो सेव करके चलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether monthly stock or book debt submitted will be considered as a quarterly statement? नहीं, क्वार्टरली स्टेटमेंट मंथली स्टॉक और बुक डेब्ट्स को नहीं बोल रहे हैं, ये जो क्वार्टरली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप सबमिट करोगे उसकी बात कर रहे हैं। QIS submitted to the bank on 28 March. सर जो मेरी नॉलेज है क्वार्टरली स्टेटमेंट, आप क्वार्टरली स्टेटमेंट क्वार्टर एंड होने से पहले नहीं दे सकता अकॉर्डिंग टू मी। क्वार्टर एंड होने के बाद ही आप क्वार्टरली स्टेटमेंट दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर्स मेंशन करना पड़ेगा। Is there no outstanding balance at the year end of a company with whom we have made transaction, then disclosure requirement? See sir, काफी सारे डिस्क्लोजर्स ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक एट द एंड ऑफ द ईयर। काफी सारे डिस्क्लोजर ऐसे हो सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शन बिल में मेंशन होंगे। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन आवर एनालिसिस एज अ ऑडिटर कि कौन से ट्रांजैक्शन को कैसे हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक ऑल द प्राइवेट कंपनी शुड कन्वर्ट। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनी सभी कन्वर्ट हो जाएगी एलएलपी में, तो मैं एक बहुत सिंपल छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। एवरी डे इन इंडिया में एवरी डे मोर देन 1000 कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज विल कन्वर्ट इनटू द एलएलपीज। List of stock of companies available on the site of the Excel on the scene? नहीं, list of stock of companies की कोई Excel शीट MC की साइट पर नहीं है, ये आपको ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी और आपको उसके बेस पर अपने क्लाइंट्स के काम करने पड़ेंगे। Next, whether the company has purchased share of a company in year 2016 which has been stock of, whether it is applicable here? Yes, आपकी कंपनी ने किसी के शेयर परचेज किया, तो मतलब आज की डेट में आपको दिखाते हो ना कि आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है और वो अगर स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, देन आपको डेफिनेटली उसकी डिटेल अपने स्टॉक ऑफ के अंदर देनी पड़ेगी। आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू टुडेस प्रेजेंटेशन। माय क्वेश्चन इज, कैन ए एचयूएफ गिव लोन टू कंपनी? एचयूएफ कंपनी को लोन नहीं दे सकता, अगर देगा तो वो डिपॉजिट माना जाएगा। If any ratio is not applicable, like there is no loan in the case, whether it necessary to give information about the debt equity ratio? Yes, अगर ratio applicable भी नहीं है तो आप nil लिखो कि not applicable on us. Next, for the stock of companies disclosure, do we need to check only if there is outstanding balance at the end of the year, or we have checked all the transaction made? According to me, आप balance sheet में detail देते हो जो transaction balance outstanding होता है at the end of the year. तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है आप उन्हीं का डिस्क्लोजर वहां पे दो। ड्यूरिंग द ईयर तो हो सकता है 10,000 कंपनीज के साथ डील किया हो, बट वो थोड़ी आएगा यहाँ पे। व्हाट इज द रिवैल्यूएशन डेट? आई मीन इफ इट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द ऑडिट और अर्लियर ईयर। देखो यहाँ जो डिस्क्लोजर दे रहे हैं ना रिवैल्यूएशन का, अकॉर्डिंग टू मी वो फाइनेंशियल ईयर का दे रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स के अकॉर्डिंग वहां में देना पड़ेगा। बट स्मॉल कंपनीज एंड ओपीसी प्राइवेट कंपनीज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द कारो। यस, कारो से एग्जम्प्ट है, बैलेंस शीट बनाने से कोई एग्जम्प्ट नहीं है, तो कारो से एग्जम्पशन से कोई रिलेशन नहीं है। Sir, kindly explain rounding of provision by example if income is less than 100 crore. Sir, 100 crore से नीचे है तो आपको अपने नियरेस्ट में राउंड ऑफ करना है कि आप उसको चाहे 1000 में करो चाहे लैक्स में करो। इसके एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा चेयरमैन को, अगर आप लोगों को शेयर करने के लिए।
How we have disclosed different aging of trading receivable, non-current asset versus current asset. सर इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस नोट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड बाय द आईसीएसआई, वो उस पे आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आंसर कर सकेंगे. Is there any exemptions to reporting of non given to 100% सब्सिडी? नहीं, रिपोर्टिंग के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है. ठीक है, प्रोसेस में एग्जम्पशन है सब्सिडीज के लिए, बट रिपोर्टिंग में कोई एग्जम्पशन नहीं है. इन केस ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनी शेयर होल्डर इज आवर कंपनी, देन व्हाट इज द अमाउंट? अगर स्टॉक ऑफ कंपनी आपकी शेयर होल्डर, आपकी कंपनी के शेयर होल्ड करती है, तो जो वैल्यू ऑफ शेयर है आपकी कंपनी की एज ऑन द एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट अमाउंट आई यू हैव टू मेंशन देयर. If the supplier is not registered under MSME, then not required to report. अगर MSME में रजिस्टर नहीं है तो MSME कॉलम में मत रिपोर्ट करो, दूसरे कॉलम में रिपोर्ट कर दो. What is the meaning of unbilled dues as mentioned in the discuss of the trade payables as well as for the trade receivable? So according to me, my knowledge of the this taxation and the accountancy part, unbilled dues का मतलब है कि काफी सारे ऐसे वर्क्स होंगे जिनके लिए अभी बिलिंग्स आपने की भी नहीं है, जिनके लिए बिलिंग्स अभी पेंडिंग है, but for that you also have to consider. In case of stock of company shareholder in our company, then ये हम डिस्कस कर चुके हैं. If a company is doing builder agreement in immovable property, whether company has to make disclosure. Builder agreement के रिगार्डिंग तो सर आई थी मैंने जो डिस्कस किया उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि जो आपको डिस्क्लोज करना पड़े. In case for XBRL, the exact amount of the capital is required to be filled. Otherwise, instant document will not be validated. What will be the position of the lightning mandatory rounding off, sir? Rounding off का provision MCA लेके आई है, XBRL की टैक्सोनॉमी MCA बनाती है. If company has given advance for investing purpose, but complete detail of such is not possible for the company. Company have to obtain the detail. Company have to give the representation. On the basis of that, auditor will represent it. Figure of notes to accounts. Figure of complete financial statement to be rounding off. Whether revised statement can be considered in the reconciling the statement submitted with the bank. So revised statement के रिगार्डिंग तो अभी मिनिस्ट्री साइलेंट है, और अगर हम देखा जाए एक प्रोफेशनल के बेस से अगर मैं बोलता हूं मैम, तो पर्पस मिनिस्ट्री का रिवाइज स्टेटमेंट नहीं है. उनका पर्पस ये है कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट दिया था या करेक्ट नहीं दिया था. Some software companies claim to provide detail of the strike of company at a glance. How? सर वो जो क्लेम करते हैं ना, हम प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करती है मिनिस्ट्री के साइड से जितने भी STK 7 है ना सारे डाउनलोड करेगी, उसके बेस पे लिस्ट को वो प्रिपेयर करेंगे. Why not HUF can give loan to the company? Because Companies Act में डिपॉजिट की डेफिनेशन में HUF से लोन लेना अलाउड नहीं है, ओनली मेंबर ऑफ HUF से लोन लेना अलाउड है. If company is not knowing about registration of the supplier under MSME, then can be considered as payable or other. इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल आंसर दूंगा. अगर आपको नहीं पता कि आपके वेंडर रजिस्टर्ड है या नहीं है, एक छोटा सा काम करो, अपने हर वेंडर को एक मेल भेजो कि आप MSME में रजिस्टर हो या नहीं हो. अगर हो तो मुझे इसका सर्टिफिकेट भेजो. अगर नहीं आता 45 दिन में 30 दिन में रिप्लाई, तो मैं मानूंगा आप रजिस्टर नहीं हो. तो एटलीस्ट इससे ये माना जाएगा हमने तो ट्राई किया था, वहां से इंफॉर्मेशन नहीं है. दिस इज नॉट द डिफॉल्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपनी. राउंडिंग ऑफ इज एप्लीकेबल ऑन द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे फ्रंट पेज हो चाहे नोट्स टू अकाउंट्स हो. Whether the total amount of debtor and creditor to be given with names to each and amount to the each to be given. सर debtor and creditor जो trade payable trade aging schedule है, आपने उसमें टोटल अमाउंट देनी है, नेम्स की डिटेल नहीं देनी है. प्लीज शेयर द पीपीटी इन मेरिट ब्रांच मेंबर ऑफ दिस मीटिंग. मैं सभी को शेयर कर दूंगा, और उसके बाद भी अगर किसी के पास पीपीटी नहीं पहुंचती है तो यू कैन नोट डाउन माय कॉन्टैक्ट नंबर. इट इज 8130757966. आप लोग मुझे एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो चैप्टर्स के साथ या CIRC के साथ. मैं आप लोगों को पर्सनली भी सबको प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, बिकॉज मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें बहुत सारे प्रोफेशनल थ्रू ऑफ द कंट्री एडेड है. इवन अगर आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप करोगे इस नंबर पे, तो मैं आप लोगों को उस ग्रुप्स में भी ऐड कर दूंगा. सो इट विल हेल्प यू कि जब भी कोई अमेंडमेंट आएगा कॉर्पोरेट लॉ का, तो आपको उस ग्रुप के थ्रू भी पता चलता जाएगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग. Expenses for the month of March accounted based on the invoicing date in April. Is it required to disclose as unbilled dues and trade payable in such? Sir, this question is little technical on the part of the account and taxation. I have to study on this question. आप ये मुझे WhatsApp कर दीजिएगा क्वेश्चन में जो नंबर दिया. I will definitely come back to you later on this question. Next, last question, बिल्कुल last question I'm taking. Stock of requirement need to be checked for company with which we have relationship or which we have transaction. स्टॉक ऑफ ट्रांजैक्शन आपको उन सभी के साथ चेक करने हैं जिनके साथ आपने ट्रांजैक्शन किया है. रिलेशन से यहाँ कोई मतलब नहीं है. So hope almost all the queries of everyone is cleared.
इसके बाद भी सेशन के बाद भी किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन रहता है सर तो मेरी कुछ छोटी मेंबर्स सी ने request- रेज हैंड कर रखा है, उनसे सर उन्हें अलाउ करना है क्या पूछने के लिए? ठीक है सनी जी, 4-5 क्वेश्चन 3 लोगों का है ना, तीनों को अलाउ कर जी। देते हैं, देन वी विल कंक्लूड इट। तो एक एक करके थोड़ा 1 बाय 1। तो मैं Sure. विनोद कुमार शर्मा जी, विनोद जी, विनोद कुमार शर्मा जी। नेक्स्ट नेक्स्ट देवेंद्र कुमार अग्रवाल जी। आई थिंक सुमन किशोर जी। हो गए होंगे। अमित कुमार भटनागर जी। सुधीर शर्मा जी। कोई सर बोल नहीं रहा, सबको मैं अलाउ तो कोई कर इशू दिया नहीं है, सर। समटाइम क्लिक भी हो जाता है, उस रीजन से भी हो जाता है। ठीक है सर। So hope this session is useful for all of you. Even I am saying again, किसी की सेशन के बाद भी क्वेरीज हो, आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा, मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दिया है, और आपको मेरी प्रेजेंटेशन जब शेयर होगी इस पे भी नंबर है, तो एनी टाइम यू कैन आस्क टू क्वेरी टू मी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू दिवेश जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल डेलिब्रेशन। एक बात तो पक्का है सर, आपने बता दिया कि 50 की जगह 75 वर्किंग आवर्स मैन आवर्स लगने वाले हैं। हमारी फीस भी सर 1.5 कर दे सकती डबल ही करनी पड़ेगी। तो थैंक यू बिल्कुल। सर। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर सीआरसी सेक्रेटरी लोकेश महेश्वरी जी to say a vote of thanks for Divesh Goyal ji. Over to Lokesh ji. थैंक यू सनी भाई। मैं आज के स्पीकर हमारे दिवेश जी गोयल का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने टाइट शेड्यूल में, क्योंकि उनका अभी बैक टू बैक 6 बजे सेमिनार वहां मुजफ्फरनगर भी है, तो उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। साथ में हमारे आज के मॉडरेटर सन्नी भाई ने हमारा आज का सेशन का मॉडरेशन किया, इसके लिए भी थैंक यू करता हूं। और सारे मेंबर्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनका भी वेलकम करता हूं। साथ में 18 तारीख को भी CIRC एक वेबिनार प्लान कर रहा है, तो उसके लिए भी जल्दी हम एक लिंक शेयर करने वाले हैं। इट्स रिगार्डिंग GST, इंटरप्रिटेशन ऑफ GST के सम इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग। मधुकर हिरेगंगी जी से हमें परमिशन मिल चुकी है उसके रिगार्डिंग, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें भी ज्वाइन कीजिए और कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दिवेश जी, थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू ऑडियंस फॉर द पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। So should I end? Yes, Yes sir, yes sir.